के बंदे हैं. So what is the product? The product is actually this team which can deliver on healthcare. ठीक है. But We're name the in a product. market where healthcare Very makes a lot of long sense. description of what's the one liner for the product. It's like a management team that turns Very simple. around a healthcare organization, a sick Not turn healthcare. around. It can easily build out. It can easily build out. I mean, दोनों options है. I Okay, mean, so we can either healthcare. buy a distressed asset, or we can build out from scratch in a very specific section of the market. So ये हेल्थ केयर की In एग्जेक्टिव healthcare. मैनेजमेंट टीम होगी जो या इंडिपेंडेंटली Yes. हायर कर ली जाएगी या वो खुद डिस्ट्रेस देख के कैपिटल रेज करके एक्वायर कर लेगी. Basically, आप fund किसको कर रहे हो? आप basically इस team को fund कर रहे हो. We are the people who are managing that fund on behalf of the investors. So there's 3 layers. There's the management team, which we have in hand. There's us who will run the fund, and then there's the guys who will put in the money. I So still think यार I think you are effectively, mixing certain specific opportunities with the idea, the broader idea of your company or whatever company you're diving into. But these are specific things at hand. They're very heavily tainted by your most recent experiences and most recent connections. Uh, will this be what you may be doing in the next 10 years? Is this what you want to be doing in the next 10 years? Would this be the kind of company you'd be happy making? These are very different questions. यार वो तो देखो, मेरे से जी अगर तुम ये पूछोगे ना कि am I someone who's happy on the operational side of things, running operations? I'm not. सीधी सी बात है. मेरे केस में there will always be देखो, इवन जो तुम ये देखो कि जो ये कंपनी मैंने बनाई है, जो इसमें दोस्त साथ सेटअप की थी इंटीरियर फिट आउट वाली, मुझे इंटीरियर फिट आउट का कुछ नहीं पता. यानी अगर आज तुम मुझे कह दो कि यार ये एक शेलिंग कोर है, इसके अंदर ऑफिस सेटअप कर दो, मैं तो नहीं कर सकता. नहीं मैंने तो नहीं कहा कि ऑपरेशनल साइड पे तो खुद इन्वॉल्व हो. Maybe you want हाँ to form a नहीं company, like I said, as an investor. Maybe you just want to be the हाँ broker, and maybe you just want to be the smart guy people hire to help them expand their business, which is kind of what you're doing now. वो ठीक है उसने तुझे it's where, I mean, P&L to की be honest, equity सी दे दी. at this point in time it makes sense to me. I'm not shutting down other opportunities, but yeah, अगर देखो, अगर मैं तुम्हारे साथ भी फर्ज करो मिलके कुछ करता हूँ, तो my role, the way I see it, would be leveraging off either my experience or my network or my investors. Those are the things I would bring to the table. जैसा तुमने सोचा था ना उसके बारे में, which is a good idea, कि यार अगर हम एक ऐसा सेटअप कर लें वहाँ पे पाकिस्तान में जिधर के सर्विसेज तुम प्रोवाइड कर रहे हो, like you said, कि आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे मैं हो, आई थिंक ग्लोबली आई डोंट थिंक यू इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो. वांट. पाकिस्तान में देख दिल मेरा इधर ही है, जाहिर है मैं भी इधर ही हूँ, बाकी का भी मैं इधर ही हूँ. लेकिन मेरा माई हार्ट गोज आउट टू पीपल हेयर स्पेशली इन द टेक फील्ड. लेकिन फ्रॉम योर परस्पेक्टिव आई डोंट थिंक यू शुड थिंक पाकिस्तान ओनली. You should think globally. If you're making a list of global investors, why the fuck should you limit yourself to Pakistan? Maybe China probably has a lot more marketplace there. But नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान को लिमिट नहीं कर रहा. मैं तो सिर्फ सोच रहा हूँ कि मैं the reason I bring this up and reason I'm actually going to reach out to this guy, वो जो है ना Lexon का जो MD है, Lexon ने वेंचर कैपिटल फंड बनाया है, फैसल समथिंग नाम है उसका. वो मुझे पता लगा कि हमारा जो बिजनेस पार्टनर है रियल एस्टेट में पाकिस्तान में, उसका बड़ा अच्छा दोस्त है. तो I might reach out to him as well कि as a lead for potential investments. So I'm looking at if you ask me right now, my role, the way I see it, is essentially a middleman role at this point in time. Do I see myself going and setting up an e-commerce firm? Do I see myself setting up a fintech firm right now? Of course Not really. No, you would. No, I'm not suggesting that at all. What I'm suggesting is कि अगर तू ये समझता है कि तेरा बेसिकली, एंड आई थिंक दैट्स एक्यूरेट, यू आर बेसिकली ए ब्रोकर. थोड़ा सा कभी तो ज़रा इधर को निकल जाता है, इन्वेस्टर बन जाता है, थोड़ा सा कभी नीचे को आ जाता है, तो मैं भी थोड़ा सा किसी की ऑप्स में इन्वॉल्व हो जाता हूँ. बट बेसिकली यू आर अ ब्रोकर एंड योर वैल्यू कम्स फ्रॉम कनेक्टिंग ए टू बी. Yes, इन एसेंस थोड़ा सा तेरा स्लांट है ये टुवर्ड्स ये जो मेरा ख्याल है तेरा मोस्ट रिसेंट रोल रहा है ना, इसमें यू आर नॉट रियली रिक्वायर्ड टू डू ब्रोकरेज बट टू मैनेज रिलेशनशिप्स ऑन बिहाफ ऑफ योर एम्प्लॉयर. And that's almost like a sales role, almost like a khidmat guzar, service, PR,
ये वाली सारी उसकी चीज़ें हैं जो डिफरेंट डायमेंशन है उसकी, लेकिन बहरहाल वो है। असल में एक्चुअली हुआ क्या, जो ब्रोकर होता है वो क्या करता है कि ब्रोकर जो है वो दो साइड्स कनेक्ट कर रहा होता है, वो कंपनी को इन्वेस्टर से कनेक्ट कर रहा होता है इन हाँ एसेंस, हाँ, फाइनेंशियल ब्रोकर जो होता है। ज़ाहिर है। तो मैंने ज्यादातर जिंदगी गुजारी ब्रोकर के तौर पे। मैंने कुछ अर्सा गुजारा इन्वेस्टर के तौर पे, जब मैं फैमिली ऑफिस में काम कर रहा था, और मैंने कुछ अर्सा गुजारा है कंपनी की साइड से, जिसमें कि आपने इन्वेस्टर से डील भी करना है। काम मेरा असल मेरा काम बिल्कुल वही था जो पहले ब्रोकर के तौर पे होता था। फर्क सिर्फ ये था कि आई डिडंट हैव टू मेक द फाइनल सेल। यानी होता था ना, ब्रोकर जो होता है वो उसके लिए वो फाइनल सेल होती है तो कुछ बनता है। हमारा क्या होता था कि final sale, there's no concept of final sale. If I have actually convinced someone to buy, which is not really my job, my job is to just tell them what the story is. Now if they end up buying, which more often या than not they did, then I need to service them in terms of for subsequent questions kya hai and so on. So my role, actually the nature of my job hasn't changed. नहीं, ये जो Pretty तेरा much what I was doing मोस्ट रिसेंट तेरा रोल था, इसमें वर यू ऑफरिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट्स टू योर इन्वेस्टर्स, या इज जस्ट बेसिकली द नहीं नहीं हॉस्पिटल एंड देन नहीं यू जस्ट, हाँ, नहीं सो देन इट्स नॉट नहीं ब्रोकरेज ना, नहीं इट्स बेसिकली ब्रोकरेज का एक एंड फिक्स हो गया है, जो भी इन्वेस्टमेंट मिलनी हाँ है वो मिलनी इसी अस्पताल को है, हाँ और बाकी जो है वो इन्वेस्टर्स हाँ की साइड से देख रहा है। तो ब्रोकर हाँ ब्रोकर तो दोनों साइड से जो आज़ाद होता है ना। ब्रोकर दोनों साइड से ज्यादा होता है। मैंने वही कहा ना, मैंने ब्रोकर के तौर पे ज्यादा वक्त गुजारा, मैंने कुछ अर्सा इन्वेस्टर के तौर पे भी गुजारा हुआ है इन इन माय कैरियर। कुछ अर्सा मैंने अब 3 साल पिछले मैंने कंपनी की साइड से भी गुजारा। सो आई हैव काइंड ऑफ एक्सपीरियंस्ड ऑल थ्री साइड्स। या मोस्ट आई स्पेंट एज अ ब्रोकर, बट आई स्पेंट सम टाइम एज अ कंपनी, आई स्पेंट सम टाइम एज एन इन्वेस्टर। हाँ, ये जो कंपनी वाली है ना, ये तुझे नौकरी की तरफ ले जाएगी, ये तुझे बार बार ये नौकरी की तरफ ले जाएगी, या तुझे कोई जैसे रिसर्च असाइनमेंट, ये पीएनएल हेड कर लो हमारा, ये वाली चीज़ की तरफ तुझे हाँ ये खींचेगी। ये अच्छी लगती है बिकॉज थोड़ी सी सिक्योरिटी सी मिलती है आपको, तो आप कहते हैं ठीक है। हाँ लेकिन हाँ तू ये हाँ सोचना कि लेट मी एक्चुअली गिव यू दैट पर्सपेक्टिव। जिस ब्रोकरेज फर्म के लिए तू काम कर रहा था इससे पहले, ये करंट जॉब हम्म से पहले, अब तूने वो हम्म बनानी है। हम्म अगर तूने वो बनानी है तो उनके पास और क्या था? हु वॉज डूइंग द फाइनल क्लोज? ओरिजिनली लाया कौन था? मार्केटिंग कौन कर रहा था? उसकी बिजनेस मॉडल उस बिल्कुल कंपनी का क्या है? दैट इज अ जर्नी ऑफ इट देखो सेल्फ। बिल्कुल डू बिल्कुल यू वांट टू गो डाउन देखो दैट इज द क्वेश्चन। उसी के की कंपोनेंट्स को अब हम बिल्ड इन कर रहे हैं। देखो, जो पहले तो जो मैं तुम्हें फंड वाला बताया, ये है प्राइवेट इक्विटी मॉडल, ठीक है। इट्स वेरी, इफ यू कैन गेट इट राइट, इट इज एन एक्सट्रीमली लुक्रेटिव पार्ट ऑफ द बिजनेस, एक्सट्रीमली। Where we right now can differentiate ourselves is that unlike most of the people, we have a very solid, experienced healthcare management team. अच्छा, उसमें ये बड़ा एडवांटेज है कि बंदा प्राइवेट इक्विटी के लिए काम कर चुका हुआ है पहले एज एन ऑपरेटर, तो वो भी बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हमारा जो मेन बंदा है इसका। So if we can get, so what we're doing is not rocket science. To be honest, what we're doing is nothing which either hasn't been done in the GCC or outside GCC. मैं समझ ठीक गया है, हूँ तेरी कुछ बात। चीजें हैं जो GCC में नहीं होती necessarily, but clearly investment banks offer it in that space. So अभी तक हमने कुछ जिद्दत नहीं की, ये नहीं किया कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हम कोई ऐसी चीज करने लगे हैं जो कि कभी किसी ने जिंदगी में नहीं की, और हम उसको जीरो से शुरू करेंगे और वो उसकी पहले मार्केट बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे लोगों को कि तुम्हें ये चाहिए। ऐसे कुछ नहीं है। सिर्फ हाँ, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसके लिए आपको थोड़ी सी मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इस मुल्क में अभी उतनी प्रेवलेंट नहीं है, ये बात ठीक है। बट द रिस्क रिवॉर्ड इज वर्थ इट, क्योंकि वो आपको स्टेबल इनकम देनी शुरू कर देती है फॉर द बिजनेस। क्योंकि इस बिजनेस की नेचर बड़ी अजीब है। मैं मुझे खुद ही बता रहा था, ये बंदा कहता है यार तुम्हें पता है मैंने जब शुरू किया काम तो 8 महीने कुछ भी नहीं आया मेरे पास। कहता है 8 महीने में सिर्फ तनख्वाहें देता रहा, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। फिर एक डील में कराई जिसमें $1 मिलियन निकल आया। सो but the problem is कि if you and that's what how investment banks try to set themselves up as well. The real money makers are these deals that they do. Yeah, this is But problem is वो deal जब तक नहीं होती तब तक तुम्हें रोजी रोटी तो चाहिए ना, yeah, यानी कंपनी चाहिए। मैं बंदों की बात नहीं कर रहा। दिस इज द टिपिकल प्रॉब्लम विद कंसल्टिंग। किसी भी कंसल्टिंग स्पेस में घुसेगा ना, बिल्कुल यही पैटर्न है। बहुत देर कुछ भी नहीं होता, फिर होता है तो बहुत अच्छा होता है, फिर नहीं। रिस्क रिवॉर्ड उसका हेलो, ये हमारा भी एग्जैक्टली यही है। हेलो,
कॉल आनी शुरू हो गई थी, सॉरी। हाँ, तो तो मैं ये कह रहा हूँ तुझे बात कि हाँ, नाउ इट साउंड्स लाइक व्हाट यू आर सेइंग इज कि बिकॉज वी हैव अ टीम इन प्लेस रिसेंट प्रायर एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट, तो मैं ब्रोकर तो मैं हूँ, लेकिन मैं ना हेल्थ केयर फोकस्ड ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, या उसके अंदर थोड़ा सा ड्रिल करके मे बी यू नो स्पेशलाइजिंग इन नॉट रियली, टेक नॉट ओवर्स रियली, और मैनेजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम देयर सर्विसेज और डेफिनेटली। समथिंग। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर डेफिनेटली, अगर फर्ज करो कि कल को तो मुझे एक टीम, अगर हम देखो हमारे लिए हम वहां से स्टार्ट करें जो हमारी करंट स्ट्रेंथ्स है। हेल्थ केयर सेंट्रिक एक प्राइवेट इक्विटी फंड शुरू करना हमारी इस वक्त इज द इजीएस्ट थिंग फॉर अस टू डू। बट कल को अगर तुम ये बताओ कि मिसाल के तौर पे कि तुम हमारे पास एक सीनियर, हमारे पास अगर फर्ज करो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट फर्ज करो कि जी कोई बड़ी हाईटेक किस्म की कोई प्रोडक्शन, या हाईटेक छोड़ो यार, हमारे पास बेसिकली कोई मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है। व्हेन आई से स्ट्रॉन्ग टीम, आई डोंट मीन समबडी हु कैन जस्ट रन द बिजनेस। द डिफरेंस हियर इज दैट यू हैव अ टीम led by which has experience on its own, which is very complementary to what business we're going to do, which is कि उस बंदे को पहले ही समझ आया कि मैंने बिजनेस बिल्ड करना है, और मैंने अपने इनको जो फंड ओनर्स हैं उनको मैंने पैसे बना के देने हैं बिकवा के, मैंने किस पॉइंट में बिकवाना है एंड सो ऑन। एक सेकंड क्या बात है, तो इस किस्म की चीज है अगर, तो we're just starting from the we're just starting from the easy point। नहीं मेरा ख्याल है लेकिन यार वही तू ना बहुत उसको वो देख रहा है इमीडिएट उस पे, मेरे हिसाब से the way this sort of thing generally plays out, and obviously I'm being very presumptuous here, I'm like that, is कि you have a very certain bias obviously from your recent past and experiences, you're trying to apply that, you're trying to roll down that momentum। अब वो या तो तेरी कंपनी जिसमें तू जा रहा है तेरे पास कुछ पैसे हैं, वो जो तूने टीम सो कॉल्ड एक लाइनअप की हुई है उसके पास कुछ अपना कैश फ्लो है, मे बी लेट्स से 6 months to a year है किसी के पास, दे वांट टू गिव टू दिस एक्सपेरिमेंट, वो या तो वो 6 महीने में कन्वर्जन हो जाएगी, या 6 महीने बाद आप बैठ के सोचेंगे यार ये तो हो गया है गड़बड़, अब ऐसा करते हैं ये चल के नौकरियां करते हैं, या फिर कुछ और देख लेते हैं, अगर कुछ और नौकरी नहीं मिल रही तो कोई इस तरह का। बट देर इज़ नो ब्रॉडर रोड मैप जो क्लियर पिक्चर से आप जिसके हिसाब से चल रहे थे कि यार अच्छा। नहीं यार ऐसी नहीं बात, देखो मैंने बताया अगर फर्ज करो कि मैंने आज जीरो से शुरू करना होता ना तो मैं शायद ये रिस्क ना लेता, क्योंकि ये एनवायरनमेंट इतनी अच्छी है नहीं जीरो से रिस्क। देखो जिस कंपनी में जा रहा है वो हेल्थ केयर फोकस्ड है। नहीं यही तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हेल्थ केयर फोकस नहीं है। वो इस वक्त जो भी डील आती है, जिसने भी पैसे रेज करने होते हैं, चाहे किसी ने टेक बिजनेस के लिए रेज करने हैं, किसी ने कोई हेल्थ केयर कंपनी खरीदनी है, किसी ने फूड बिजनेस खरीदना है, वो उसके ब्रोकरेज के लिए बैठा हुआ है। उस वक्त उसके पास कुछ 4-5 मुख्तलिफ डील्स हैं जो कि अच्छे स्टेज पे भी पहुंची हुई। लेकिन तेरा पीएनएल हेल्थ वाला है नहीं, होगा ये कि the way I'm going to go in, I'm going to have basically access to all। हाँ जाहिर बात है कि जिसमें मेरा बहुत प्रोएक्टिव काम नहीं होगा उसमें I'll be getting a smaller share, ठीक है। सो कल को जब ये डील्स इसकी निकलती हैं, अभी तो मैं इन एनी केस एनएमसी वही चल रहा हूँ ना, अभी तो मैंने उससे कुछ लेना नहीं शुरू किया, ये मैंने उसको क्लियर कर दिया था कि मुझे पे नहीं चाहिए, I'd much rather do this। सिंपल सी बात है कि अभी ये जो $10 million रेज करना है मिसाल के तौर पे, अगर इस $10 million में ही मैं कुछ डलवा दूं तो अभी तो मैं कंपनी के साथ मिला भी नहीं, उसमें से मेरा शेयर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। Once I join the company, then I'll start getting access to the P&L। उसमें खुद ही उसने कहा था कि यार हम यही करेंगे, we'll make sure कि इन डील्स पे भी तुम इन्वॉल्व रहो on one level or another, ताकि तुम्हें कल को ये फिक्र ना हो कि यार मेरे तो पैसा आना ही नहीं है, 6 महीने 8 महीने काम नहीं चला तो मेरे तो पैसा आना ही नहीं है, which is the right way to think about it। कि obviously एक certain point 6-8 महीने तो मैं निकाल लूंगा, अगर उसके बाद भी इनकम नहीं आती तो फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या करना, राइट। सो जो ये कंपनी है, कल को अगर हम ये प्राइवेट इक्विटी फंड खोलते हैं तो हम हेल्थ केयर पे तो नहीं रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हम हेल्थ केयर से स्टार्ट करने के मूड में है, बिकॉज दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ वो ठीक है, मीन दैट यू डू नॉट डू एनी अदर प्राइवेट इक्विटी फंड, नहीं, नॉट एट ऑल। कल को आपको लगता है कि ये किसी फूड बिजनेस में करना है, आपको लगता है कि किसी
पता नहीं सर्विस, किसी भी ले लो यार, किसी को भी लो, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, some private equity firms tend to have funds which are centric, like for example एक healthcare centric होगा, but then you'll open another fund which is going to be manufacturing centric, then you'll open another one which may be food centric. So the best part and the worst part about this business is जो हम इन्वेस्टर्स होते हैं, हमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली बात होती है। बातें हमसे जितनी मर्जी करा लो सेक्टर पे, एक अनजान बंदे के साथ हम बहुत लंबी बात कर लेंगे, जिसको अपने सेक्टर का पक्का पता है उससे हम घंटे से ज्यादा बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो जैसे ही घुसेगा उसके टेक्निकल्स में, डिटेल में, हम फंस जाएंगे। but that is exactly how this works, because we are not there to run these things, we are there to lead capital to people who can run these things, and then as a broker you make money once. The difference is, अगर फर्ज करो कि तुम यहाँ पे आओ, तुम कहो जी मैंने $10 million रेज करना है, मुझे रेज करवा दो, हमने रेज करवाना है, हमें 1% मिल जाएगा, आधा % मिल जाएगा, 2% मिल जाएगा, जो भी मिलना है मिल जाएगा, और कहानी खत्म हो जाएगी। फंड बनाते हो तो उसमें क्या एडवांटेज होता है कि then it's an ongoing thing. For example, if we're successful in raising this $50 million fund, which is one of the things that we're starting to look at, that has a regular annual 2% income coming from it as a base fee. Then when you eventually sell the assets, तो जो उसमें gain आता है investors को, उसमें वो hurdle rate होता है, मसलन 10%, 15%, जो भी उससे ऊपर ये return बनाएंगे per annum, उसका वो उसके ऊपर से X% हम उसमें से लेंगे. So that is called a carry. So let's say for the sake of argument things go brilliantly well. $50 million का फंड शुरू हुआ, हमने नए एसेट्स, वो जो हेल्थ केयर टीम है उसने आके नए एसेट्स बनाए स्क्रैच से, उनको चलाया, अगले 2-2.5 साल में दे डू रियली वेल, इट्स अ रनिंग एसेट, इनकम जनरेटिंग एसेट, आपने बेच दिया, मिसाल के तौर पे $150 million का बेच दिया, तो जो $100 million आपका ऊपर आया 50 के, उसमें से एक डिसेंट परसेंटेज मिलती है जिसको कहते हैं कैरी, जो मिलती है उस फंड मैनेजमेंट टीम को, जो कि हम लोगों, क्योंकि हम फंड मैनेज कर रहे हो. सो देन दैट इज वेयर यू मेक द बिग मनी फ्रॉम दीज थिंग्स. और एक दफा फंड आप कामयाब हो जाओ सक्सेसफुल चलाने में, तो उसके बाद पैसा आपके पीछे दौड़ता है. सो वी अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ दिस थिंग. और अगेन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरीथिंग इज इजी एंड ओवरनाइट टू डू. डील्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी मुझे क्या था, कहता है यार मेरा अभी तक इस साल में कोई इनकम नहीं है, ठीक है, but he's got these deals right on the verge of being completing. He could actually be looking at the best year yet. So उसको बैलेंस करना है रेगुलर इनकम से, वो फंड भी कर सकता है, which fund gives you a mix of regular income and अच्छा इशू चक्कर ये है कि what I want to clarify to you is that we are in essence, based on experiences, restricting ourselves to the financial sector. That is true. कि हम लोग वो कोई नॉन फाइनेंशियल सेक्टर कंपनी नहीं खोलने जा रहे, ये बात बिल्कुल सही है. बट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं, वो उसमें हम डाल रहे हैं, वो हम डाल रहे हैं. और where he wants me engaged is because there are parts of that business that he may not be able to capitalize on as well as I can, given my experience and my connections. So इस तरह हम देख रहे हैं. So if I was to go and come and sell this company to you, मैं तो तुम्हें individual examples दे रहा हूँ जो कि हम add-ons करने की सोच रहे हैं. This is not the business. The investor relations part is not the business. Yeah, basically it is an add-on to the business. Yeah. that's a बिल्कुल. So from my, देखो मुझे तुम्हारे साथ भी, with you as well, I would want you to lead any discussion you and I ever think of partnering up with. You, in my mind, in the space we're looking at, are the technical lead. ठीक है, उसमें जो financial aspects डालने हैं, कि उसको कैसे उसको करना है, structure करना है, क्या करना है, तो उसमें जैसे तुम सोचोगे कि अच्छा, मतलब अगर तुमने ये सोचा आइडिया, जैसे तुमने मुझे पहले कहा कि अच्छा देखो 2-3 तरीके हैं. एक तो ये है कि तुम इस तरह का कोई मॉडल सेटअप करते हो जैसे Crunchbase है, that's one thing. I mean obviously there I can be much more proactive in the very get go. कि यार अच्छा हाँ, अगर ये ऐसा मॉडल सेट कर रहे हैं तो तुम क्या सोच रहे हो, मैं इसमें ये सजेस्ट करता हूँ and so on. Flip side is if you want to set up a company and you've gone through that Crunchbase list and you've realized कि यार ये फला सेक्टर है within the broader tech sector जो मैं कर सकता हूँ, there I will let you lead it.
and I will obviously be there as a support. Now, the way I see myself, even in companies I'm involved in, this is true for the Pakistani business real estate का जो हम कर रहे हैं. This is true for my interior fit out business. I actually play the same role that I've always played as a broker, as an advisor, but from the inside. मिसाल के तौर पे जो मेरा क्या काम था कि I had to connect the interior fit out company to one of my friends who basically was looking to do a very big project. अब because there was a disconnect, क्योंकि वो जितना बड़ा स्केल का प्रोजेक्ट था वो फ्रेंकली स्पीकिंग उस कंपनी को जिसको भी बने हुए 1 साल हुआ और चिद्दे पिद्दे प्रोजेक्ट्स किए हैं उसने, उसको नहीं मिलना था. I had to continuously play the role of advisor in between. एक दफा लड़ाई भी हुई इनकी आपस में, कुछ थोड़ी खिटपिट भी हुई, उसको भी सॉर्ट आउट किया. At no point in time did my role change in essence from being a middleman or an advisor. It's just that I was doing it from the inside of the company. So that's how I see myself in most cases. अगर तुम मुझे आज आके कहो ना तुम CEO बन जाओ कंपनी के और उसको चलाना शुरू कर दो, तो I think I probably will fail. No, obviously nobody is looking at you in that way. I think बात तो वही है कि एक ब्रोकरेज ही है बेसिकली. तू एक ब्रोकरेज से निकल के दूसरी में चला गया. Here you are part owner or P&L owner or whatever you want to call that. Exactly. थोड़ा तेरा फ्रीडम का टेल है, थोड़ा तेरे पास पोर्टफोलियो बड़ा. ये अपना नेटवर्क बढ़ाते कैसे हैं? So how this friend of yours, how does he find more investors? यार देखो, सबसे वैल्यूएबल चीज फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी नेटवर्क बढ़ाने के लिए है कि आपने जो बेचने जाना है ना, अगर तो वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है. अच्छा, प्रोडक्ट मैं बहुत ब्रॉडली इस्तेमाल कर रहा हूँ. नाउ इट कैन बी अ बिजनेस आइडिया, इट कैन बी इवन रियल एस्टेट, एनीथिंग. ठीक है, मतलब अभी मुझे पता है कि इसके पास पोटेंशियली एक रियल एस्टेट आ रही है जो कि ट्रॉफी एसेट है उसका लंदन में, कोई $150 मिलियन की के पाउंड की वो ट्रांजैक्शन है. तो अगर तो वो फर्ज करो कि बहुत अच्छा, वो जारी बात है उसको इस तरह पिच करेगा कि वो एक रनिंग बिजनेस है, हम उसको कर रहे हैं, एक्चुअली तो रियल एस्टेट है. ठीक है, अगर तो फर्ज करो कि वो आइडिया बहुत स्ट्रांग है जिसने के पैसे बना के देने ही देने, unless you mess it up. ठीक है, then it becomes very easy. You start approaching, first you approach your initial network, then you start using that network to further. मुझे कहेगा कि यार अच्छा मेरे पास डील आई है, तुम अपने इन्वेस्टर्स को देखो. मैं इधर से अपना, मेरा एक दोस्त है जो बड़ा वेल कनेक्टेड रहा है, मैं उसको कहूंगा. So if this is something that can sell well, then it gives you great opportunity to increase your network. Because network भी वो तभी बढ़ता है जब आपके पास कोई चीज हो बेचने के काबिल. I get that idea. अगर तो वो चीज है जो कि exactly. I get that idea totally. Like हम भी जब पार्टनर्स इकट्ठे हुए हैं तो मैं एक खास तरह की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मेरे पार्टनर्स और तरह की करते हैं, तो वो मेरे नेटवर्क को यूज करता है, मैं उसके को यूज करता हूँ, एंड सो एवरीबॉडी इज बेटर ऑफ बीइंग टुगेदर. बट फॉर इंडिविजुअल्स देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन आवर नेटवर्क्स रन आउट, or that we feel that we have done the best we can from these networks and we need to expand them, which is where I mean I was like 10 years ago and I realized कि ये बड़ा मुश्किल काम है. How do you expand them? देखो, एक उसमें ये है कि उसमें 2 पार्ट्स आते हैं. एक तो तुम उस वक्त एक्सपैंड करो जिस वक्त तुम्हें जरूरत नहीं है, मीनिंग you start going into these, you join these various conferences, you attend these various conferences. Sure. You do basic networking. How does from where you start? How did your previous company do it? Like उनका sales and marketing department होगा ना कोई, वो क्या करता था? यही यार मैंने तो जिस वक्त ज्वाइन किया था, तुम सॉरी कौन सी बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बैंक की बात कर रहे हो कि किसकी बात कर रहे हो? हाँ, इन्वेस्टमेंट बैंक जो है. यार देखो, मैंने आज तक जिस भी इन्वेस्टमेंट बैंक को ज्वाइन किया वो ऑब्वियसली इस स्केल पे थी, आइदर इन द रीजन और इंटरनेशनली, कि उनको प्रोएक्टिवली उस तरह से स्क्रैच से तो मार्केटिंग करनी पड़ी थी. वो इनका अपना एक नाम था. ठीक है, अच्छा उसमें ये होता है कि वो क्या करते हैं कि मल्टीपल लेयर्स हैं. एक तो ये है कि आप बाकी इन्वेस्टमेंट बैंक से बना के रखते हो. ठीक है, आप बाकी इन्वेस्टमेंट बैंक से बना के रखो, क्योंकि हर कभी कोई डील आती है तो द डील more often than not cannot be done by just one guy. So if you're in good terms with other service providers, they will be one source of you being involved as and when they need it. So that's a very easy, that's a very useful way of expanding. एक हो गया. 2 ये हो गया कि you just
when you don't need the service, तो उस दौरान में you just keep join either attending, presenting at conferences, attending conferences, Okay. networking events. In some cases, you pay to get into some of these things. मसलन यहाँ पे एक चीज है something called a capital club, which is like the Obviously. a club for like these big boys and stuff, you know. So Yeah. things like वो जिसका मजाक उड़ाते हैं ना, golf खेलना नहीं और ये I काम know वो करना. सब चलता है. ये conferences भी हमारा भी बिल्कुल क्लासिक यही है. So I'm just checking off what you're saying. But I'm thinking like अगर मैं Crunchbase पे जाके देख रहा हूँ कि यार 32,000 investor listed है, you probably don't know more than like a fraction of that. Maybe जो venture funds ही अगर हम निकाल लें सिर्फ, तो वो there seems to be a lot of potential, because one is always limited by the network one has, right? वो तेरे पास यार तुम्हारी बात सही है, लेकिन देखो इसकी एक फ्लिप साइड है, जो 80-20 रूल होता है, right? कि only 20% of your connections will really matter, right? At the end of the day. Now the thing is, if you have एक चीज क्या है कि अगर आपके पास assets हैं जो कि आपको लगता है, मतलब you're going out to sell something which you're convinced should sell. Now one option is that maybe you got it wrong, तो फिर तो आपको बहुत ही ज्यादा मना कर देंगे. दूसरा क्या है कि टिकट साइज पे डिपेंड करता है. मसलन फर्ज करो कि जिसने आप ये $150 million की इसके पास ट्रांजैक्शन आ रही है, राइट? तो मुझे इसने कहा कि यार देखो, मुझे इसने फोन करके कहा कि मुझे बताओ तुम्हारा रॉयल्स मेंबर्स की फैमिली ऑफिस में कनेक्शंस हैं. मैंने कहा यार फ्रेंकली स्पीकिंग डायरेक्टली तो नहीं है, एक दो हैं, वो मुझे लगता है रियल एस्टेट उठाएंगे नहीं. तो उसने कहा नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि $150 का टिकट है, टिकट बहुत बड़ा है. So then what happens is that because you have a valuable or potentially valuable asset at $150 million, there are very few people who would be able to take that. अच्छा, वहां पे आपको लगता है कि मुझे अब अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना है. अच्छा, चक्कर ये है कि ये ऐसे लोग हैं कि जब तक मेरे पास ये $150 million हाथ में नहीं होगा, टिकट तो ये $150 million वाली डील नहीं होगी, ये मुझसे मिलेंगे नहीं. और मुझसे ये मिलेंगे तब भी जब मेरे पास डील होगी. तो फिर वहां पे यू नीड टू गेट अ लिटिल मोर इनोवेटिव कि और चेक करते हो, इधर चेक कर उधर चेक कर, कैसे करना है, क्योंकि ये डील्स भी ऐसी होती हैं कि आप इनको the way we do it, and I think that's the way it's been done with you with your previous companies, कि there is an engine that is responsible for making these new introductions high quality. उसका जो prep work है initial, यानी मेरे से अगर तो पूछे ना मेरे बिजनेस में पिछले 6-8 साल चैलेंज क्या रहा है, तो बिल्कुल यही रहा है. मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे कनेक्शंस थे, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे काम दे दिया, मेरा काम चल पड़ा. मैं कहा जबरदस्त. एक बंदा, दो बंदे, चार बंदे रखे, पैसे आने शुरू हो गए. ज़्यादा ना, यू गेट कंफर्टेबल, यू गेट यू नो, यू कैन टेक इट इजी, इट्स ऑलराइट, लाइक ऑटो पायलट पे चल रहा है, शुगल मिला, मसला कोई नहीं. इवेंचुअली यू रियलाइज दिस इज नॉट गोइंग टू गो ऑन फॉर एवर. ये मेरा कनेक्शन इवेंचुअली देयर इज अ बॉटम टू इट, उसने एग्जॉस्ट हो जाना है. आई नीड टू गो गेट अनदर वन. But I can't go, I am not, personality wise, I am not the guy who's going to go and talk to 100 different people a day and try and come up with meetings or initial meetings. मैं अपने को present कर रहा हूँ. It's a very exhausting thing for me. It's a very exhausting thing for most professional people to be socializing at that scale. You want somebody जो उसको मज़ीद synthesize करे, वो मिले 150 से रोज़ाना, उसके बाद उसको synthesize करे, qualify करे, filter करे. अब मेरी ना हफ्ते में एक meeting बहुत किसी अच्छे investor से करवाया करे. That's what I want. You know, that's the guy I want. और वो चुप करके साइड पे बैठा रहे मेरे बैक ऑफिस में, और वो लगा रहे और लगा रहे और लगा रहे. नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, अच्छा मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूँ. जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया है, जो उसमें ब्रोकरेज की कह लो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कह लो, जिसमें उसमें ये थोड़ा सा फ्लिप है. वो ये है कि जैसे जैसे आप सीनियर होते हो जाते हो ना, आपका असल काम ये बनता जाता है. मसलन जो हमारा एमडी होगा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो बड़ी सीनियर पोजीशन होती है, वो बैठ के कभी वो मॉडल नहीं बना रहा होगा, वैल्यूएशंस नहीं कर रहा होगा, वो इस किस्म के काम नहीं कर रहा होगा. हाँ, वो ये करेगा कि वो जब नीचे वाले सारे लोग हैं वो आके कहेंगे कि यार ये देखो हमने ये काम किया है, हमारी ये रेंज आ रही है वैल्यूएशन की. नहीं, मैं बैक ऑफिस वो नहीं, मैं एनालिस्ट को बैक ऑफिस नहीं कह रहा, मैं सेल्स को बैक ऑफिस कह रहा हूं. मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने लगा ना कि तुम जिसको सेल्स को बैक ऑफिस कह रहे हो ना, जो एमडी वगैरह हैं, जो सीनियर लेवल्स हैं, उनका असल में काम ये बन जाता है. नहीं, हमारे यहाँ पे होता है रिलेशनशिप चलाना, रिलेशनशिप बनाना और चलाना. क्योंकि देखो होता क्या है कि जो ये सीनियर लोग हैं, ये उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं
उस लेवल के लोगों से कनेक्ट कर हाँ सकते हैं बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल जो बिल्कुल ऐसे ही है, डिट्टो है ये तो हमारा, बिल्कुल in ऐसे ही this है। business, हाँ तो इन दिस बिजनेस, अच्छा अब जहां तक ताल्लुक है कि उनको, जैसे तुमने कहा कि इन्वेस्टर्स जो हैं मसलन वो सिंथेसाइज करते हैं और उनमें से तुम्हारे पास एक दो को लेके आए, तो दैट इज द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ ब्रोकर स्लैश इन्वेस्टमेंट बैंक वर्किंग विद यू गाइस। मसलन मैं तुम्हें बताता हूँ कि नहीं मैंने नहीं नहीं नहीं, वो इन्वेस्टर नहीं नहीं, रिलेशंस में, हम नहीं करा हाँ, सकते, हम तो तेरा किसी इन्वेस्टर से तेरी तेरी मीटिंग भी नहीं सेट करा सकते। अच्छा। नहीं मैं फ्लिप कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारा ये काम होगा। देखो मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ, मेरे मेरे कहला 3 बैंक थे मेरे पास जो कहते थे मेरे कहलाते थे कॉर्पोरेट ब्रोकर। ठीक है, कॉर्पोरेट ब्रोकर इज वेरी यूके टर्म, बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन होती है कि वो रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी कुछ लोगों को साइन अप करे। अच्छा वहां पे क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है तो उसके वो पैसे नहीं चार्ज करते अपफ्रंट। उसमें क्या होता है कि मेरे साथ जो बैंकर्स हैं वो इनसाइडर्स बन जाते हैं ऑलमोस्ट, उनके पास वो बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो बाकी किसी को मैं कभी नहीं दूंगा, वो इनसाइड इंफॉर्मेशन। वो लोग मेरे साथ, वो इफेक्टिवली मेरी टीम के एक्सटेंशन थे, सो आई हैड एक्सेस टू वेरी सीनियर बैंकर्स हु वर इन इफेक्ट एक्सटेंशन ऑफ माय इन्वेस्टर रिलेशनशिप। तो सही उन है। लोगों के साथ बैठ के हमने क्या किया कि मैंने उनको मैंने कहा कि देखो, मुझे जब साल गुजर गया, तकरीबन साल सवा साल गुजर गया मुझे काम करते हुए, कि यार हमने बड़ी अग्रेसिव मार्केटिंग की है और हमारी शेयर प्राइस काफी अच्छी हो गई थी, लेकिन शेयर होल्डर रजिस्टर का जो मिक्स था मैं उससे बहुत खुश नहीं था। हाँ। तो उनको मैंने कहा कि यार अब मुझे चाहिए है ऐसे फंड्स के ऊपर फोकस करना है जो बड़े टिकट्स ले। आई वांट बिगर टिकट फंड्स टू कम इन। अच्छा वहां पे क्या हुआ कि दैट इज एग्जैक्टली द सिचुएशन यू एक्सप्लेन। आई वांटेड टू मीट इन्वेस्टर्स हु कुड पुट इन बिग टिकट्स। वैसे तो मेरा काम ही था मार्केटिंग करना, तो मैं तो हर वक्त मिलता था लोगों से, बट नाउ आई वांटेड टू start splitting my time better towards guys who would can put in big money. So the investment banks came back with the list कि भाईजान ये synthesized list है, ये बंदा, अच्छा उसको मैंने रिफाइन किया, मैंने कहा मुझे ये चाहिए जो इतने डॉलर का टिकट ले सके, इतने डॉलर का टिकट ले सके। ठीक है, तो ये फिर उन्होंने जाके काम किया। अब मजे की बात ये है कि what you've explained is exactly that situation. This is what the investment या bank बट or the advisors, देन देयर के बी मैनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स, और उनके फिर बहुत से कॉर्पोरेट के वो दफातर हो सकते हैं ना, जो ये जो रोल तो डिस्क्राइब कर रहा है, ये भी तो बहुत सारे हैं दुनिया में, इनसे तुम सबसे हाँ कनेक्टेड है। देखो, नहीं देखो, जो तो जहां वैसे तो ये होता है कि जो अब जहां मैं एनएमसी में था उधर तो मैं तकरीबन हर एक से कनेक्टेड था। वो एक बड़ा सिम्बियोटिक सा रिलेशन होता है ना। नहीं भाई, देखो कितने हैं हम दुनिया लोगों में का ये स्टॉक वाज डूइंग वेल है। ये जो बैंक हैं इनके ये कॉर्पोरेट दफातर कितने हैं दुनिया में? 100 हैं, 50 हैं, पाँच बहुत हज़ार हैं, होंगे दस यार, हज़ार हैं? बहुत ज्यादा। तो तू सबसे कनेक्टेड पता है। नहीं कितने मुझे हंड्रेड, नहीं बट आई डोंट नीड टू बी राइट। देखो आई व्हाई वाज नॉट? कनेक्टेड टू अ सीनियर टीम इन जेपी मॉर्गन। बियॉन्ड दैट जेपी मॉर्गन इज स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। नहीं, बट द मोर वो हॉप्स, उस टीम का काम था, राइट राइट, हाँ वो उस टीम का काम था कि वो आगे जाके उनसे कनेक्ट करें अगलों से। yeah, but the more hops you have, eventually, you know, you're kind of losing money at every hop, right? नहीं तुम ये देखो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब अगर मेरे सामने जेपी मॉर्गन की लंदन टीम, ठीक है, दे वर माय प्राइमरी कॉन्टैक्ट। नाउ when we mapped out the big guys who could take, because there was not a very long list of people who could take $100 million ticket and above. That was one key hurdle I wanted. ठीक है, तो उन्होंने नैरो डाउन किए अमंग द ग्लोबल इक्विटी इन्वेस्टर्स की $100 एंड अबव का टिकट जो एक स्टॉक में लेगा इमर्जिंग मार्केट में, वो इतने नाम। अब उनमें से कुछ अमेरिका में बैठे हुए थे, कुछ एशिया में बैठे हुए थे। इन लोगों का काम होता था, मैंने उनको कहता था मुझे इससे मिलवाओ, तो उनकी जो एशिया की टीम है, अब जेपी मॉर्गन अपने एशिया वाले ऑफिस को कहेगा कि मुझे मिलवाओ। अब आई डोंट नीड टू बी फोकस्ड ऑन द बैक एंड ऑफ द वर्किंग, आई जस्ट वांट टू गो मीट दिस गाय। ठीक है, सो वहां पे ये एडवांटेज है कि आई डोंट नीड टू नो जेपी मॉर्गन एशिया, जेपी मॉर्गन अमेरिका, जेपी मॉर्गन साउथ Yeah, yeah. अफ्रीका, जेपी मॉर्गन पाकिस्तान। दिस इज देयर हेडेक। यार आई नो एग्जैक्टली व्हाट यूर सेइंग। मैं हम भी बिल्कुल यही करते हैं। हम बजाय इसके कि हम अपने, मतलब हमारा टारगेट जो है वो, जैसे तेरा टारगेट इन्वेस्टर है ना या कंपनी, हमारा टारगेट ये CIOs होते हैं या बड़ी एंटरप्राइज होती हैं। हम कई दफ़ा डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, तो फिर हम मिडल मैन जो उनके साथ पहले से एग्जिस्टिंग एंगेज्ड हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम एक्सेंचर के पास चले जाएं, हम डेलॉयट के पास चले जाएं, उनको कहेंगे यार आप उनसे नेटवर्क हैं तो आप हमें एक स्टेप अपने पीछे रख लें। सब कॉन्ट्रैक्टिंग हमारे यहाँ उसको कहते हैं, तुम लोग कोई और इस्तेमाल करते होगे, लेकिन काइंड ऑफ वन स्टेप डाउन द फूड चेन। बट यू से ठीक है यार, दैट गाय हैज मेड द एफर्ट टू मेक दैट कनेक्शन, लेट हिम कीप इट एंड विल जस्ट बी
वन स्टेप डाउन द वाइन, दो यू आर लोअर डाउन द फूड चेन, और उसमें आप हम्म जाहिर है कम कम अक्वायर कर सकते हैं। तो ये तुम लोग का हम्म। कोई मिनिमम साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है? मतलब टेक सीड वगैरह तो बहुत छोटी होती हैं, 1-1, 2-2 मिलियन की होती हैं। तुम लोगों ने अपना को गोल रखा हुआ है कि यार कितनी देखो, छोटी करना चाहते हो? देखो चक्कर ये है कि हम लोग ऑब्वियसली हम इन्वेस्टर्स नहीं है, हम तो मिडिलमैन के तौर पे कर रहे हैं। हमारे लिए ये है कि अगर टिकट बहुत छोटी होगी तो उसका इशू सिर्फ ये होगा कि तो उसकी फ़ी बढ़ा ऑब्वियसली दो वी ना, डोंट मेक मनी है। फ़ी बढ़ा दो ना उसकी। नहीं नहीं, देखो ना, अगेन यू गोट अंडरस्टैंड, there's three components, right? There's the guy who's got the company and who wants the money. हम्म, There's the guy who's putting the money in, हम्म, and then there's us who's trying to connect people. आई ठीक है? अंडरस्टैंड। अच्छा, we can obviously switch between roles depending on how things are set up. नो नो, अगर आई एम तुम्हारा नॉट कोई फंड सेटअप सजेस्टिंग है। यू स्विच रोल्स, आई एम सेइंग यू स्टे द ब्रोकर। आप कहते हैं जी हमारी ब्रोकर फी हम्म, 2% है। अगर आप 100 मिलियन से बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगे तो 2% है, अगर आप 1 मिलियन मांगे तो 10% हाँ, है। वो बात ठीक है, लेकिन 10% पे देता कोई नहीं है यार। व्हाटएवर जो टेन भी, परसेंट पे तो बिकम्स व्हाटएवर टू मेक ऑनर्स। सेंस। लेकिन हाँ, नॉर्मली ऐसे ही होता है, नॉर्मली ऐसे ही होता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद टिकट प्राइस बहुत छोटा होना शुरू हो जाता है। ऑल्दो गिवन व्हाट वी आर राइट नाउ, फ्रेंकली स्पीकिंग, आई डोंट थिंक कि हम 1-2 मिलियन वाले को भी छोड़ेंगे। मेरा अंदाजा कहता है कि गिवन दैट वी आर एसेंशियली अ स्टार्टअप जिसको भी 2 साल हुए हैं। अच्छा, ठीक ये है? तुम्हें एक वी सेकंड, व्हाट्स हैपनिंग इज, थोड़ा एक सेकंड, मेरा ट्रेल ऑफ थॉट घूम जाएगा। ये तुम लोगों को जो परसेंटेज देता है ये कौन सी साइड वाले देते हैं? ये दोनों देते हैं? Who gives you the 2%? Is it यार the company acquiring or the company investing? it varies from deal to deal. In some cases you can actually get it from, अच्छा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नॉर्मली एक साइड को रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मली। ठीक है? उसमें ये होता है कि कुछ कंपनियां होती हैं वो आप अगर उनका बिकवाओगे तो ही आपको देंगे, अगर वो खरीद रही हैं तो आपको नहीं देंगे। ठीक है? सो आम तौर पे द इजीएस्ट वे टू डू इट इज whoever is raising the money, selling the product is the person who's going to give you the money. So that is the easiest way to charge money. That being said, there are some companies which are actively looking in the market to invest, so they will offer you a buy side commission जिसको कहते हैं। इस समय एनएमसी था, वो बाय साइड पे भी दे देता था कमीशन, ऑल्दो कि वो बाद में अंदाजा हुआ है कि कुछ 2 नंबरियां भी थी उस काम में। लेकिन ये है कि ज्यादा आसान ये होता है कि जिसकी चीज बिकवा रहे हो ना, ज्यादा आसान ये होता है कि उससे लो पैसे, क्योंकि वो जरूरतमंद, बेसिकली जो जरूरतमंद है जिसको पैसे चाहिए वो ज्यादा आराम से आपको पैसे देगा बमुकाबला जो खरीद रहा नहीं, कई दफ़ा कंपनियां है। मतलब है बहुत ज़बरदस्त जा रही होती हैं और इन्वेस्टर पीछे पीछे फिर रहा होता है कि यार मेरे से ले लो। हाँ, नहीं लेकिन उसमें फर्क नहीं नहीं, लेकिन एक फर्क है ना कि जब वो जो तुम सिचुएशन कह रहे हो ना, वो तो फिर वो उसमें क्या होता है कि उसमें वो कुछ बंटवारा कर सकते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर आप बंटवारा कर सकते हो ना, देन यू कैन स्प्लिट द कमीशन। सो डिपेंड करता बट इसलिए इन द है, रेंज सो ऑफ डिपेंड 1 to करता है, 2% लेकिन you're saying, right? 1 to 2% टाइप रेंज होती है आमतौर पे। मैं इससे पूछ लूंगा, मैं ऐसे करूंगा ना, मैंने भी बात करनी है तो मैं इससे पूछ लूंगा कि यार $1-2 मिलियन वाली भी कोई आती है तो उसमें, क्योंकि मेरा अंदाजा कहता है ये जाने तो नहीं देगा अभी कुछ भी। जो अगेन गिवन द सिचुएशन वी आर इन राइट नाउ, यस आइडियली वी वांट टू लैंड समथिंग बिग वेयर यू कैन मेक प्रॉपर मनी, बट यू नो देयर बेगर्स कैन बी चूजर्स। अभी आप या सिचुएशन में हो कि जो भी मिल आप जाए ले लो, हाँ शुरू तो करो, वो मिलेगा ले ले। शुरू तो करो। So how is it different from an entrepreneur's perspective? He can go to a bank nowadays in the US and get money at 0%. ये तुम लोग अच्छा equity देते हो उसकी? हाँ, इक्विटी ठीक देगा नहीं ठीक ठीक है। So but वो equity के बगैर वो बैंक से ले सकता है 0% पे, और तुम लोगों से लेगा तो 1% और फिर equity भी देगा। That doesn't sound very interesting, by the way. नहीं यार, देखो फर्क है ना, बहुत बड़ा फर्क है। पैसे बहुत बड़ा वापस देने फर्क ये पड़ेंगे है कि या नंबर वन, देना कुछ नहीं पड़ेगा? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सी ऐसी कंपनीज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बैंक से लेंडिंग के लिए क्वालिफाई नहीं करती, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी हैं। इट्स देयर इज अ लॉट दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। दिस इज अ वेरी हाई रिस्क स्टेज बिजनेस की। इवन दो कि आप ये भी कह लो कि अगर 1 से 2 राउंड हो भी गए इन्वेस्टमेंट के, तब भी इट्स अ वेरी हाई रिस्क बिजनेस, राइट? तो उस पॉइंट पे मोर ऑफन देन नॉट उनको बैंक लेंडिंग मिलेगी नहीं। अगर बैंक लेंडिंग मिल भी जाएगी तो वो वापस करने हैं। मोर ऑफन देन नॉट दीस गाइस आर बर्निंग थ्रू मनी, हाँ मैं समझ दे गया, नॉट ठीक, वो जनरेटिंग तो कैश। फ़र्क चीज़ है, बिल्कुल तो फ़र्क चीज़ है। वो काफी अच्छा, फर्क हो मेरी जाता अभी बात हुई इमरान से, मैं तेरे से बात करते करते उसको मैसेज किया था,
वो मुझे बता रहा है कि हम्म, इनका जो पहला राउंड रेज हुआ है ना उसमें 5% पे किया इन्होंने ब्रोकर को. अच्छा So there is actually space for you. होगा There, yeah. So no, not होगा not not डेफिनेटली आई मीन not with Imran in particular, but there are like ton of आई Imran-like अंडरस्टैंड companies आई on अंडरस्टैंड Crunchbase. हाँ आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड लुक एट द एंड ऑफ द डे इफ यू थिंक अबाउट इट So to your सिंपल point सी of बात है कि not being able to charge more than 2% is like a real example. देखो मेरा जहां तक मेरा ताल्लुक है मुझे तो क्योंकि इसकी प्राइसिंग का बहुत आइडिया नहीं है आई मीन थिंक अबाउट इट मैंने आज तक ये वाली डील मेकिंग वाली साइट में तो काम भी नहीं किया हुआ ज्यादा Mm. तो ये तो उसको बेहतर पता होगा जो ये करता आ रहा है जिसकी उसकी एक्सपर्टीज ज्यादा ये है जो मेरा कॉलीग एक्स कॉलीग है जो कि जिसके साथ मैं काम करने की सोच रहा हूँ उसकी एक्सपर्टीज हाँ, ये है उसने कंपनी ठीक है बनाई है ना. तू अभी भी अब एनालिस्ट के माइंडसेट में ही बैठा हुआ है. तू मालिक वाला माइंडसेट नहीं हाँ बना रहा. देखो ना मैंने तो ये चीजें देखी मैंने इनमें से बहुत चीजें देखी ही नहीं ना अच्छा नहीं वो तो उसको ये भी एडवांटेज था ना कि वो तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का टीम का हेड था तो ऑब्वियसली वो हाँ डील साइन करता था हाँ, तो उसको उसको तो उसको कुछ. भी पता होगा मतलब मुझसे तुम आज पूछोगे मेरी साइड का तो मैं तुम्हें प्राइसिंग शाइसिंग सब बता सकता हूँ जो मैं जिस जो काम मैं करता हुआ आया हूँ ठीक है क्योंकि अब मैं उस लेवल पे आ गया था कि मुझे पता था कि प्राइसिंग क्या होती है मैं फ्लिप समझ साइड गया. करो तो जाहिर बात है जो मैंने नहीं किया हुआ काम या मैंने देखा हुआ नहीं प्रोएक्टिवली इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स बीइंग साइन तो उस पे मैं तुम्हें नहीं कर सकता गाइड और नहीं यार, फ्रैंकली सही स्पीकिंग है. वैसे भी यार ये भी बहुत बड़ा फैक्टर तो ये भी है यार कि आप अगला बंदा कितना डेस्परेट है अगर अगला बंदा हाँ बहुत डेस्परेट है तो आप 7-8% भी निकाल लोगे 10 भी निकाल लोगे हाँ डिपेंड करता है ना अगले को हाँ कितनी की हाँ. जरूरत है नहीं यार, ये बड़ी मज़े की गुफ्तगू रही है. और ये मेरा ख्याल है हमें तो ना 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद रीसिंक करना चाहिए. जब तू उसको, अभी तो खैर तेरी नौकरी भी लगी हुई है, जब तू छोड़ के जाएगा ना उधर 4-6 हफ्ते लगाएगा तो ये समझ आ जानी है कि ये हम्म। काम तूने कितना देर करना है. अभी अभी तो ज़ाहिर है बहुत सारे मफरूज़े हैं जो. यार देख मेरा मैं तुझे बताऊं सच्ची बात अगर तो इंशाल्लाह मैं बताता हूँ अल्लाह का शुक्र है हमारा पाकिस्तान में हम तो अच्छा चल रहा है ठीक है मेरा ये दूसरी तरफ जो दूसरा बिजनेस था इसने भी माशाल्लाह से बड़े अच्छे पैसे दिए थे पिछले साल और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी जब ये थोड़ा कोरोना शोरोना का ड्रामा खत्म होता है ना थोड़ा तो ये दोबारा अच्छी स्पीड पे चल पड़ेगा तो अगर तो मुझे रोजी रोटी की फिक्र ना करनी पड़ी ऑन एन इमीडिएट बेसिस तो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे पता है कि इस काम में जान है यानी इसके लिए मुझे अगर फर्ज करो टाइम लगता भी है तो मैं लगाऊंगा मैं अभी भी यानी अभी करंटली मेरे पास कोई 4-5 महीने के पैसे हैं अल्लाह का शुक्र है यानी इफ माय जॉब इज टू एंड टुडे और ये जब मुझे निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिलना है चलो कुछ और ना भी दें तो मेरी एंड वो क्या उसको कहते हैं पेड लीव जो अनयूज्ड पेड लीव है वो काफी दिन है तो इनको पैसे तो मुझे कुछ देने ही पड़ेंगे इफ आई कैन कवर 6 से 7 महीने यार तेरे तो तो उधर नंबर वन अपार्टमेंट भी थे. तुझे क्या मसला? तेरी दाल रोटी तो उधर से नहीं निकल आती? नहीं यार तो उनकी मॉर्गेज भी तो देनी होती है ना अच्छा, वो और भी उधर से फिर मॉर्गेज चल पैसे रही वो है. मेरा ख्याल था पे ऑफ हो गई होगी अब तो. हाँ नहीं नहीं यार मैंने उसको पे ऑफ नहीं किया उसकी वजह ये है कि उनकी इनकी प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होती रही है तो मैं मॉर्गेज को रेंट से ही पे ऑफ करने के चक्करों में मेरा अच्छा अच्छा. होता क्या है कि इसमें से कुछ पैसे मैंने पाकिस्तान भिजवाने के लिए रखे हुए हैं एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ रेंट में से क्योंकि वो बेसिकली एक अपार्टमेंट जो है वो अम्मी की इफेक्टिवली किया हुआ है हमने तो अच्छा उसमें कुछ पैसे जाते हैं अम्मी को जाते हैं बाकी जो पैसे बचते हैं वो फ्रैंकली स्पीकिंग अब तो इस वक्त तो रेंट्स इतने नीचे आए हुए हैं वो शायद पूरी मॉर्गेज और वो सर्विस कॉस्ट ना कवर करते हैं कुछ मैं जेब से डाल देता हूँ लेकिन मेरे ज़हन में है कि वो अपार्टमेंट्स खुद ही पे ऑफ हो रहे हैं एसेंशियली तो चलते रहे कब है तो मैंने मैच्योरिटी उनको नहीं उसकी? है मैच्योरिटी कब है उसकी? खत्म कब हो रही? पे ऑफ कब हो वो रही तो है बड़ा मॉर्गेज टाइम तेरी? लगेगा यार तो बहुत टाइम लगता है बहुत टाइम लगता है उसमें तो तुम्हारा कुछ डेकेड प्लस होगा हाँ आई माइट एट सम पॉइंट पे देम डाउन ये बट टू बी इमरान ऑनेस्ट इट मेक मोर सेंस जो लड़का जिसकी मैं बात बता रहा था ना, ये कंसल्टिंग करता था उधर लंदन में. तो इसने एक तो पहला घर इसने लिया तो इसने मॉर्गेज उसकी बड़ी जल्दी पे ऑफ कर दी. और फिर इसने दूसरा घर लेके रेंट पे चढ़ा के उसकी मॉर्गेज पे ऑफ करता. तो इसको वहाँ से जाहिर है वो क्योंकि पाकिस्तान में सेटल हो गया अब आके, तो खर्चा तो वहाँ से इनकम आ रही हो तो यहाँ तो खर्चा कोई होता ही नहीं. तो वो भी बड़ा उस लिहाज से कंफर्टेबल है. वो आराम से बैठा एक्सपेरिमेंट करता है. देखो उसकी दाल रोटी सारी उधर से आती है. मेरा समझ चक्कर ये ना मेरा मेरा फर्क ये है कि मेरे केस में the majority of the money in the last 2-3 years has been going towards our Pakistani business क्योंकि that makes much more sense देखो Which is part of your एक्सप्लेन investment करता हूँ portfolio, right? हाँ ऑफ कोर्स क्योंकि देखो जहां तक ताल्लुक है मेरे यहाँ वाली का उसमें मैं पैसे ऐड करूं तो टेक्निकली हाँ मुझे रेंट के पैसे जेब में आने शुरू हो जाएंगे और ज्यादा लेकिन अपसाइड मेरी कुछ नहीं देखो अगर फर्ज करो कि मैंने खरीदा था मिसाल के तौर पे 100 पे ठीक है और उसमें से मैंने 80 मॉर्गेज दी थी मिसाल के तौर पे अब चक्कर क्या है कि अगर तो अपार्टमेंट की प्राइस हो जाए 200
ठीक है, तो वो सारी अपसाइड मेरी है। अच्छा, अब irrespective of whether I'm paying that 80 down or not, that 100 doesn't change. What will happen is I'm going to pay and I'm going to in effect the value will not change to me. यानी मैंने जो पैसे डाले बस वही मुझे accrue हो, समझो मेरी बात। देखो ना, नहीं, खास 100 नहीं। की चीज है, देखो 100 की चीज है, 20 मैंने डाले, 80 का मैंने मॉर्गेज ले लिया, वो चीज होगी 200 की, ठीक है। अगर वो 200 की होगी, आज के दिन में जाके बेचूं तो मुझे मिल जाएंगे 120। अब अगर मैं 80 के में से 40 पे कर दूं और मैं बेचूं तो मुझे मिलेंगे 160। क्या होगा कि मेरे जो वो 40 हैं, उन्होंने कोई एज सच, उन्होंने यस अपार्ट फ्रॉम द रेंटल इनकम उन्होंने कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं की। यही 40 मैं अगर दूसरी इन्वेस्टमेंट में डालता हूँ और अपनी मॉर्गेज पे करता रहता हूँ थ्रू रेंट और व्हाटएवर, तो दैट 40 कैन एक्चुअली क्रिएट वैल्यू। यानी अगर फर्स्ट करके मैंने एक और चीज में 40 डाले और वो डबल हो गई, तो 40 के 80 हो गए। दैट्स एक्चुअली बीन वर्किंग आउट वेल। अगर मैंने जो पाकिस्तान में पैसे लगाए हैं, अगर यही मैंने यहाँ के पार्ट में पे डाउन करने में लगाए होते तो आई वुड हैव बीन फार वर्स ऑफ। तो अल्लाह का शुक्र है कि obviously at this point in time where I do see myself generating income inshallah for a while, तो I'm adding investments। उसमें जो ये मैंने कंपनी बनाई थी दोस्त के साथ, ये भी इन्वेस्टमेंट ही है। इसमें मैंने उस ठीक ठाक अपने हिसाब से ठीक ठाक पैसे डाल दिए थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अच्छी चल पड़ी। तो अब ये जो इधर करने का जा रहा हूँ, जो इसके साथ करने लगा हूँ, वो भी इन्वेस्टमेंट ही है। तो वो यानी अगर आप पे गिव अप करते हो और काम करते हो, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट ही है। So don't get me wrong, I do understand the risks. I do understand the. I just trying to understand actually, but बहुत अच्छा है तेरा, सही तू सेम जा रहा है, चलता रही, दीना हो जाए बीच में। मैं कोशिश तो कर रहा आगे, अल्लाह की मर्जी होती है। थोड़ा सा ना बंदा 15-20 साल नौकरी करता रहे ना, थोड़ा सा रिस्क अवर्स हो जाता है। अपना बिजनेस ऑब्वियसली यू नीड दैट a little bit more। किसी के पैसे हो तो खर्चने आसान होते हैं, अपने हो ना बंदा 1000 बार ही सोचता है कि यार ये बड़ी मुश्किल से कमाए हुए। नहीं तो मैं तुझे बताऊं मैं सही बात कि अगर मैं जिस तरह की मेरी नौकरी पिछले 3 साल रही है, अगर ऐसी ही नौकरी मुझे और मिल जाए तो मैं बिजनेस नहीं करूंगा, क्योंकि अच्छे वाले पैसे मिल रहे थे, अपसाइड थी, स्टॉक्स मिलने लगे थे, ट्रैवलिंग ऐसी शानदार किस्म की हो रही थी जी, हर दूसरे हफ्ते किसी मुल्क पहुंचे हुए हो। फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मुझसे पूछो तो क्या मैं उसको छोड़ के खुद बिजनेस में जाऊंगा? कभी भी नहीं, क्योंकि उसमें ठीक है आई कुड मेक मच मोर मनी इन बिजनेस, but the kind of risk reward relationship would not have made sense. Right now the situation is different because I see a difficult environment, so either mera risk reward the environment will be all right in a while, and then I mean I think if the entrepreneur mindset is मेरा अपना experience, I know मेरा अपना जो experience है ना तो जिंदगी में, और मेरे साथ 3-4 दफा हो चुका है, वो ये है कि every crisis does bring opportunity। और मुझे इस वक्त ज़हन में यही खटक रहा है कि यार, और मैं दुआ भी करता हूँ, दुआ इस्तिखारा भी पढ़ता हूँ, तो यही खटक रहा है कि यार ये काम कर लो। ठीक है यार, पिछली दफा भी कौड़ा खुट करके पैसे डाल दिए थे एक बिजनेस में, और वो अल्लाह का शुक्र है कि दे गया रिटर्न, बड़ा अच्छा दे रहा है, एंड आई कैन सी द वैल्यू। मुझे पता है ना कि 2 साल तो हमने कैसे निकाले थे उसके। तो इसके वही बात है कि बिल्कुल स्क्रैच शुरू होता है तो मैं घबराता, क्योंकि यहाँ एक बेस है, एंड even if he gives me a small portion of the income of stuff that I'm not directly part of, तो चलो मेरी रोजी रोटी कर ले। Obviously I'm not talking about the same income. I don't expect, मैंने उसको पहले ही कहा था, मैंने कहा यार सीधी सी बात है, मैं इनकम लूंगा ही नहीं। I want to be a direct percentage owner, ताकि मुझे पता हो कि कल को ये लड़ाई नहीं हो रही कि यार मेरा इतना बोनस बनता था, तुमने नहीं दिया, ये तो वो सीधा रखो, ये बिजनेस तुम्हारा वर्टिकल है, ये तुमने क्या है, इसमें से 40% तुम्हारा है, 30% तुम्हारा है, ये है वो है, जो करना है हमने वो कर ले, मुझे पता हो कि मेरा क्या है। तो ये चीजें हम नॉट आउट कर रहे हैं। मैं समय इस चीज के ऊपर लड़ाई करने से पहले देखता था कि हम लोग सॉर्ट आउट करने के हम क्या क्या कर सकते हैं, करना भी है कि नहीं करना। पहले इस पे लड़ना शुरू कर दो कि मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। ऑब्वियसली पहले वैल्यू तो देख लो ना, कोई बंदा कुछ करके दिखाए तो ही उसके हिस्से करता, वरना 10% ऑफ 0 इज 0। बिल्कुल सही है चल। तो खैर 3 मिनट तुम हाँ, तो कमिंग बैक टू व्हाई आई थॉट मेक सेंस टू स्पीक टू यू, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि तेरे ज़हन में अच्छे आइडियाज आते हुए रहते हैं खुद के करने के, ठीक है, उनको भी हम देख लेते हैं कि उनमें से किसी चीज में मैं एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दूं। बट एज आई एक्सप्लेन टू यू वेरी क्लियरली कि द वे आई सी माय सेल्फ इवन एज अ बिजनेस ओनर is pretty much like an advisor।
Yeah, business owner advisor or an नहीं advisor. see I think where you from and now I'm speaking from IT incubator looking for funding perspective, which is kind of mostly what I do. uh, Hmm. वहाँ पे दो किस्म की हेल्प चाहिए होती है. एक कंपनी आती है, वो कहती है भाई हम ये काम करते हैं Hmm. एंड वी हैव रीज़न टू बिलीव कि ये बहुत अच्छा है. एवरीबडी बिलीव्स दैट. सम ऑफ देम आर Hmm. डिलूजनल एंड सम ऑफ देम आर नॉट, सो यू कैन एनालाइज देम. उनमें से जो अच्छे वाले हैं, Hmm. they don't have the sense Hmm. on how to present themselves to investors, and they don't have the network to बिल्कुल of investors, right? So they need help not just बिल्कुल. connecting to an investor but also making the pitch deck and refining their offer, sometimes changing their sometimes changing their tech a little bit. I give an example. ये इमरान वगैरह, they started off making an IoT company, Internet of Things company. ठीक है, because there was a Hmm. buzz there. Hmm. इन्होंने कुछ टूल्स देखे हुए थे, ये उसमें से जब घुस गए बस उसके अंदर डाइव मारी. किसी ये होस्टेड Hmm. इंक्यूबेटर में थे यूके में, और 3 महीने उन्होंने गाइड किया Hmm. इनको, ये चला दिया. अभी इन्होंने जाके Hmm. देखा कि यार ये बात तो हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन इधर जब भी इन्वेस्टर्स के सामने बैठ रहे हैं तो वो मशीन लर्निंग की बातें कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कर रहे हैं. अब इन्वेस्टर Hmm. ने इनको फीडबैक दी कि यार ये डालो इसमें. तो इन्होंने जाके प्रोडक्ट Hmm. के अंदर उसका एक एस्पेक्ट डाल दिया कि जी अच्छा हम IoT करते हैं विद मशीन लर्निंग. उसके प्रोडक्ट की तरफ वो Hmm. प्रोडक्ट को उसकी तरफ मोड़ा है इन्होंने. उसको मोड़ने से इनको इन्वेस्टमेंट दबा सही है. मिलनी शुरू हो गई. So that's the Hmm. sort of advice. It's not just a brokerage, it's also advisory to the Yeah. startup कि यार तुम Yeah. you're in the right space, Yeah. maybe look at this kind of space. अब जैसे मैं तुझे ब्रेक डाउन दे रहा हूँ कि यार e-commerce वगैरह ये सब इन्वेस्टर्स इसकी तरफ मुतवज्जे तो हैं. सो अब इनके वाली कंपनियां Hmm. मैं पीछे जाके आराम से ढूंढ सकता हूँ. मेरा एक अभी Hmm. कॉलीग है, मैं तो जस्ट टू गिव यू क्विक एग्जांपल, उन्होंने अभी एक कंपनी स्टार्ट की है यहाँ पाकिस्तान में, और इट्स ऑडली Hmm. टाइम दैट वेरी वेल. वो क्या करती है कि इट्स अ Hmm. फुल सर्विस ई कॉमर्स थिंग. सो स्मॉल बिजनेस ओनर, he wants to go online, he has to go online Hmm. right now, he has no choice, everything is shut down, he बिल्कुल has to do बिल्कुल. that to survive. ये उसके पास जाते हैं, उसको कहते हैं यार यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, गिव अस योर लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री. एक लड़का आएगा आपके पास हफ्ते में एक बारी, आपने इन्वेंट्री की लिस्ट देनी है, दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ योर Hmm. थिंग. यू विल नाउ हैव एन ई कॉमर्स साइट ऑन दिस सही. URL. जब ऑर्डर प्लेस होएगा हमारा लड़का आएगा, आपसे ऑर्डर कलेक्ट करके Hmm. वहाँ डिलीवर भी कर देगा. सो इट्स लाइक अ daraz.com बट फॉर स्मॉल बिजनेस, वेरी वेरी हाँ, स्मॉल समझ बिजनेस. गया ठीक है, समझ एंड गया ही इज गोइंग अराउंड सीइंग अ समझ लॉट ऑफ गया. नीड फॉर इट बिकॉज एवरी कॉर्नर शॉप now needs to stay alive, and they are doing everything for them because the small shop doesn't have the resources to really do anything ना. तो ये बिल्कुल वो ये राइडर भी दे बिल्कुल. रहे हैं उनको, ये शायद उसकी काफी. इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी, मार्केटिंग भी कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह. सो इन्होंने ये Hmm. अपना बिजनेस मॉडल बनाया. यूके का लड़का है और इधर से लड़का हमारा है साथ, उसके जो डेवलपमेंट साइड पे है. तो वो बड़ा अच्छा आइडिया मैं समझता हूँ. अगर ई Hmm. कॉमर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको आप जाके कहो कि यार वी कैन गेट यू लाइक $1 million फॉर इट और समथिंग टू टेक दिस आइडिया समवेयर एल्स, वो तो जहाँ मरी चले जाएंगे, वो तो लुडियाँ पाएंगे. लेकिन उनको कोई ऐसी Hmm. एक्सेस उनको नहीं है ना, वो अपनी प्रेजेंटेशन में इतने रिफाइंड लगते हैं. एक आइडिया है लेकिन व्हेन यू सही है. लिसन टू इट, द वर्किंग प्रोडक्ट है, Hmm. कस्टमर बेस है, Hmm. लेकिन इफ यू लुक एट द पिच डेक Hmm. और द फाउंडर टॉकिंग अबाउट इट, ही साउंड लाइक एन इडियट. Hmm. You know, so it's I see समझ that गया. as a jewel because nobody is guiding him. थोड़ी सी गाइडेंस उसको मिल जाए कि बेटा मेरे ये देखो ये ई कॉमर्स की ये कंपनी Hmm. तुम्हारे साथ की इतने मिलियन उसने एक्वायर की, ये उसका पिच डेक है, ऐसी मुझे कहानी सुना. अब वो Hmm. फौरन समझ जाएगा, फटाफट Hmm. पकड़ लेगा और उसको Hmm. बताने सुनाने जोगा. लेकिन वो गाइडेंस कोई नहीं दे सक रहा. मैं तो दे ही नहीं सकता, मुझे तो खुद नहीं पता. लेकिन somebody Hmm. like you can really Hmm. help, give them that last stepping stone, and that takes you from 2% to 7% or something. You know what I mean? Hmm. Hmm. Makes sense. Makes a lot of sense. तो that's लेकिन where I इसको would तुम इस like तरह to करो ना, build on तुम that इस with तरह you. सोचो, तुम इसको इस तरह सोचो ना, तुम इसको इस तरह सोचो कि आइडियली फिर ये काम करते हैं कि तुम दिस इज व्हाट आई वांटेड टू स्पीक टू यू अबाउट, कि इसको हम ये काम करने वाला है तो हम इसको ऐसे लेवरेज करें कि बेसिकली वी लुक एट रिफाइनिंग कि किस तरह से तुम और हम कनेक्ट करके ये काम करें. क्योंकि देखो तुम्हारे पास ऑन ग्राउंड एक्सेस है इन चीजों की. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या होती है कि अच्छा इसमें भी ऑब्वियसली मल्टीपल लेयर्स होती हैं. एक होता है फर्स्ट राउंड इन्वेस्टमेंट, एक होता है सेकंड राउंड इन्वेस्टमेंट. ऑब्वियसली ईच carries its own risks, how much money you want to raise, etc. Some cases people will have too high expectations, जैसे कि मुझे अंदाजा है क्योंकि
होता ही है कि आप जब सुनते आते हो कि ये यूनिकॉर्न दिस एंड दैट, तो जो हमारे टाइप के लोग, जो हमारे टाइप के बैकग्राउंड के लोग कोई कंपनी खोलते हैं, वो तो जाके कहता है भाई मेरी पहली दिन ही कंपनी की वैल्यूएशन $100 मिलियन है और मुझे $2 मिलियन चाहिए, आप 2% ले लें। यार और जब मैं दूसरा है जिस तुझे तरह के तुम बंदा बता रहे हो। मैं तुझे बड़ा स्पेसिफिकली हम्म, बता देता हूँ, मेरा जो कम्युनिटी है ना, ये हम्म, अर्ली स्टेज है, बने हुए 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल हो गए मैक्सिमम। हम्म, सॉफ्टवेयर बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है, जनरली किसी कस्टमर के लिए बनाया होता है, वहाँ से आइडिया आता है, वो बेस पकड़ता है, उसको हम्म, एनहांस कर लेता है। सीड प्री सीड सही है, ढूंढ रहा होता है 1 से 10 मिलियन के करीब, पैसों की एक्सेस नहीं ठीक है, होती उसके पास, वो तुझे आराम से 5 से 7% दे देगा हंस के, मसला कोई नहीं होना उसको। ठीक है, ठीक है। ठीक उसको है। कोई इन्वेस्टमेंट की बेसिक्स नहीं पता होती, क्योंकि वो यहाँ बैठा है, वो उसके ऊपर अंडे दे रहा होता है हम्म, प्रोडक्ट के ऊपर, उसको उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी विजन जो है ना पाकिस्तान की हद तक महदूद होती, ग्लोबल नहीं होती। ठीक है। उसका उसकी एबिलिटी होती है प्रोडक्ट की टू गो ग्लोबल, लेकिन हम्म, वो जो लड़का है वो बिकॉज ही एज अ लैक ऑफ कैपिटल, वो अपने एम्बिशन ही को कंस्ट्रिक्ट कर देता। ठीक है, हम्म, ये सिनेरियो है। अब तू हम्म, मुझे बता कि जो तेरा नेटवर्क है, मैं तुझे एक मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर तो मैंने तुझे दी है क्रंच बेस वाली, ठीक है, मैं तुझे बता सकता हूँ कि यार ये बिल्कुल। हेल्थ टेक में है। अब हो सकता है तुम लोगों का हेल्थ टेक का नेटवर्क हम्म, ना हो, या ब्लॉकचेन का नेटवर्क ना हो, या वट। तुम लोग ये बताओ हम्म, हमें कि जी तुम्हारे नेटवर्क के हिसाब से इस पोर्टफोलियो का अगर इन्वेस्टमेंट सीकर है, क्या बोलते हो इन्वेस्टमेंट सीकर को हम्म, तुम लोग? यही, चलो यही कह लेते हैं उसको। हाँ, इन्वेस्टमेंट सीकर जो है, इस प्रोफाइल हम्म, का मैं किसी भी इंडस्ट्री में ढूंढ सकता हूँ। मतलब हेल्थ की हम्म, कंपनियाँ, हेल्थ टेक अगर बहुत इन वोग है, तो हेल्थ टेक की कंपनियाँ हम्म, हमारे पास दो रही हुई हैं। वो ये बनाते थे EMRs, हम्म, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल सही है। रिकॉर्ड सिस्टम्स, हाँ, अमेरिका में बहुत चले हाँ, हैं हाँ, उनकी, बिल्कुल, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट थी, तो बिल्कुल, बहुत बने यहाँ दबादब लोगों ने बिल्कुल, बनवाए। उन्होंने कोड पढ़ा है, बिल्कुल। फेंका हुआ है उसने पीछे साइड पे, या कोई वेबसाइट पढ़ी है तो पढ़ी है, पिछले 10 साल से उसने बॉदर ही नहीं किया उसको सीरियस लेने को। तो हम्म, मैं उसके पास भी जा सकता हूँ, मैं ब्लॉकचेन वाले के पास भी जा सकता हूँ, मैं किसी के पास भी जा सकता हूँ। एक एंड जो है ना वो फ्लेक्सिबल है, उसकी प्रोफाइल यही है कि वो छोटा सही है, है, वो 1 से 10 मिलियन ढूंढ रहे हैं, बट इंडस्ट्री कुछ भी हो सकती है। तुम लोग ठीक बताओ है। कि अगर तुम लोग 5-7% पे ऐसे किसी बंदे को एंगेज करें, तो व्हाट इंडस्ट्री डू यू रेकमेंड, व्हाट टाइप ऑफ कंपनी, व्हाट अदर क्वालिफाइंग क्राइटेरियन शुड आई बी इवेल्युएटिंग इट अगेंस्ट, एंड सेइंग यार ये होगी ना हम्म, 5 चीज़ें, तो असजद साहब एक कदम नीचे उतर के तेरा हाथ पकड़ेंगे और तुझे 5-7% पे 1 मिलियन सही दे है, देंगे। ये क्या, मुझे थोड़ा सा इसकी सही है। डेफिनेशन को क्लियर कर कि क्या हो, तो फिर हम ये हम्म, वसूख से कह सकते हैं कि हाँ अब तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ से आगे हम तुम्हें ले जा सकते हैं। ठीक है। देखो मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ कि जो यहाँ वाली जो जो यहाँ के इन्वेस्टर्स है ना, ये भी रिलेटिवली वो हैं इनएक्सपीरियंस्ड हैं इस रीजन के, इन इन टेक वाली साइड पे। तो दे आर एक्चुअली अ हाइब्रिड ऑफ टिपिकल इन्वेस्टर्स एंड टेक इन्वेस्टर्स। तो क्या होता है कि जो प्योर वीसी टाइप इन्वेस्टर्स है ना, उनके क्राइटेरिया बड़े फर्क होते हैं। वो कहते हैं प्योर ग्रोथ दिखाओ मुझे, हाइपर ग्रोथ दिखाओ मुझे, प्रॉफिटेबिलिटी चाहे दिखाओ ना दिखाओ। यहाँ पे जो यहाँ वाले होंगे वो कहेंगे यार अच्छा ग्रोथ तो हाइपर हो, लेकिन मुझे ये भी बता दो ना कि तुम प्रॉफिटेबल कब होगे। यार प्री ठीक है। सीड में कहाँ से तो ग्रोथ दिखाता है अगर कोई? तो प्री सीड में तो सिर्फ कहानी होती है, है। सीड हाँ प्री सीड में तो हाँ, कहानी होती है नहीं लेकिन वो खाली। ये कि मतलब कि किस पॉइंट पे, मतलब कहानी में भी ये किस पॉइंट पे तुम्हारी कहानी जो है ना वो पॉजिटिव होती है, ऑल्दो कि वो इवेंचुअली कभी भी नहीं होती उस पॉइंट पे। इन्होंने पहला आपने कोई कहेगा मिलियन ना 2 साल के सामने। इमरान वगैरह ने जब रेज किया तो इनका रेवेन्यू सिफर था। जब इन्होंने दूसरा मिलियन रेज किया तो इनका हाँ रेवेन्यू, यानी द कंपनी वाज वैल्यूड एट 3 मिलियन पाउंड्स, देयर रेवेन्यू वाज 100,000 पाउंड्स। हाँ हाँ, ऐसे ही होता बाकी है, सारी ऐसे ही। कहानी। नहीं मैं वो मैं कह रहा हूँ। हाँ मैं वो क्या वो है ना कि कहानी किस पॉइंट तक लेके जाती है, बेसिकली तो कहानी स्पिन करनी है वो ना। कहानी तूने दी नहीं मैं है। तुम्हें पता कर देता हूँ, मैं तुम्हें पता कर देता हूँ सेक्टर वगैरह का भी। मेरा वैसे अंदाजा ही कहता है कि इस वक्त गिवन दैट अब हो क्या रहा है कि स्पेशली जो अभी क्राइसिस आया है इसके बाद तो लोग टेक के और फैन हो गए हैं कि यार कुछ भी टेक हो जाए ना, ये वो .com वाला काम तकरीबन होना एवरीथिंग शुरू हो गया डिजिटल दोबारा। यार, कुछ अमेरिका कुछ में डिजिटल का चल रहा एवरीथिंग है, हर डिजिटल चीज़ कुछ। डिजिटल होनी है। तो यहाँ के इन्वेस्टर्स भी जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ मजे की बात कि जो ये एवॉक वाली है, जो डील इसने कर रहा है, मैंने ये भिजवाई अपने एक दोस्त को जो कि काफी बड़े फैमिली ऑफिस में है, यहाँ रॉयल्स के फैमिली ऑफिस। उसने देख के कहा कि यार मुझे ना इसमें 2-3 मसले नजर आते हैं कि देखो इनकी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही, ये तो पिछले 2 साल से इवन विदाउट कोरोना इनको प्रॉब्लम आई है कि पिछले 2 साल से ग्रो नहीं किए। तो क्योंकि वो देखता है इंटरनेशनल डील, उनके पास बहुत बड़ी डील एक्सेस है।
वो मुझे कहता है कि यार देखो ये मुझे तो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही अनलेस कि दे कैन एक्सप्लेन कि क्या मसला है, बट देन अगेन कोई मसला है तो मैं मसले में क्यों पढूं। अच्छा यहाँ के रीजन वालों ने कहा जी नहीं नहीं, ई कॉमर्स तो आजकल आग लगी हुई है, ई कॉमर्स का कुछ भी मेरे पास आ जाए ना तो मैंने खरीद लिया। तो इस किस्म की सिचुएशन भी हो जाती है। तो मैं थोड़ा पता कराता हूँ उस बंदे से कि क्या क्या प्रोफाइल चाहिए, किस हाँ साइज पे चाहिए, फर्स्ट राउंड पे हम तैयार हैं, फर्स्ट राउंड पे तैयार हैं, बंदे नहीं तैयार है। हम्म, तो इस किस्म की चीजें मैं पूछता हूँ उससे, हम्म। तो इसको फिर लेवरेज करने ये होते हैं। तो थोड़ा लेकिन सा ना मेरे एक्शन आइटम यही बनता है मेरे इस जो मीटिंग गोल में से। है, इसमें से जो एक्शन आइटम बनता है ना टेंजेबल, वो यही बनता है कि तू थोड़ा सा हाँ, हमें क्वालिफाइंग क्राइटेरियन दे, और अगर आइडियली तो ये हम्म, प्री सीड और इतने परसेंट और ये इस पे रखे तो हमें ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा रेडीली मिल सकते हैं कि मेरा मैं नेटवर्क देख- वो है। मैं मैं देखता हूँ, मैं देख के करता हूँ। ठीक है। कुछ तुम खुद भी अपना, जिस तरह तुम ये भी सोच रहे थे ना कि जो जैसे ये तुम्हारे अपने जेहन में था आइडिया कि यार अगर हम अपना एक किस्म का वो खोल लें प्लेटफॉर्म जिसमें कि इस किस्म की कंपनियां आके काम कर सकें एंड सो ऑन। मेरे भी यहाँ पे एक दो लोगों से पाले पड़े हैं जिन्होंने कुछ शुरू किए हैं, ये ऑफिसेज, ये वी वर्क स्टाइल ऑफिसेज, कोर शेयरिंग टाइप काम वगैरह कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो अपना भी कुछ करना चाहो तो मुझे बताओ, तो करना है। उसमें मैंने भी मैंने बिल्डिंग देख के रखी हुई है। मैं तो एक्चुअली बयाना तो, भी दे आया हुआ था, वो कमीने पैसे शॉर्ट हो गए तो वो हो नहीं सकी, वरना मैं तो हम्म, बिल्डिंग के बकायदा पैसे पकड़ा आया हुआ था। मैं तो बड़ा सीरियस हूँ इस पे। कितना उसमें कितनी कॉस्ट नजर आती है तुम्हें टोटल उस काम में टू स्टार्ट ऑफ? यार मैंने जो बिल्डिंग देखी थी ना, लैंड देखा था, वो वाज लाइक 4 करोड़ का था। और हम्म, मैंने एक प्लॉट बेच के तो फिर वो ख़रीदना था, वो बिका नहीं टाइम पे, जो टाइम पीरियड था स्टिपुलेटेड वो उसमें वो बिक नहीं सका। उसके ऊपर लगेंगे कोई 2-1 करोड़, 6 करोड़ के करीब प्रेमिसेस बनती 6 करोड़ है, की बन जाएगी, दस ठीक है। बारह हज़ार स्क्वायर फुट की। एंड आई एक्सपेक्ट के हम्म, 7-8-10% आराम से उसमें से आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। नहीं, 5-6% तो नॉर्मल रेंटल यील्ड होती है ना। तो हमने हिसाब हम्म, लगाया था कि एक, हमने उस तरह की एक बिल्डिंग बनी हुई देखी थी, और हम्म, वो सो सो बेसिकली 16 मरले का एक घर है, प्लॉट है, ठीक है। अ, हम्म, वो अगर आप 16 मरले का घर बनाए ना तो वो तकरीबन 2-3 करोड़ रुपए का हम्म, बनता है यहाँ। और उसके ऊपर जो सही है। रेंट है वो आपको 3-4% आता है पाकिस्तान में, ठीक है। हम्म, उस जो हम्म, घर मैंने देखा उसमें उसने हॉस्टल बनाया हुआ था। सो बजाय सही है। रेगुलर रूम्स के देयर वाज लाइक अ कॉरिडोर, एंड लेफ्ट एंड राइट टू इट वर रूम्स, एंड एवरी रूम हैड अ बाथरूम, एंड he was renting that. So he had हम्म, doubled that. He was making something like 8 to 10% from that. सही है। उस एक कमरे में दो हम्म, बच्चे ठहरते हैं और 10-10 हज़ार रुपये देते हैं रहने के, ठीक सही है। है। मैं उस कमरे में गया, मैंने कहा यार ये तो हमारे वर्किंग हॉल के साइज़ का है, जिसमें अभी मेरा ऑफिस चल रहा है, हमने भी हॉल बनाए हुए हैं। हम्म, तो ये हमारे वर्किंग हम्म, हॉल के साइज़ का, हम उसमें 6 बंदे बिठाते हैं और हम हर बंदे से 15,000 रुपये लेते हम्म, हैं, हम्म, ठीक है। सो ही वॉज मेकिंग 20,000 पर रूम, वी कुड मेक 60,000 पर रूम फ्रॉम दैट, जस्ट अ रफ सही। नैपकिन कैलकुलेशन। हम्म, सो आई फिगर्ड कि यार ये सही। अगर 10% बना रहा है ना, तो मैं इसमें से कम से हम्म, कम भी 20-25% निकाल सकता हूँ। चलो थोड़े बहुत आप कॉस्ट ओवर हेड को हम्म, रिस्क विस्क कर दो, और अगर हम्म। अगर इसी को मैं ज़रा एट स्केल कर सकूँ तो ज़ाहिर है मेरी वो एक स्केल की वजह से भी कॉस्ट कम होनी शुरू हो जाती है। तो तो दैट वाज तुम माय थॉट वैसे प्रोसेस, बट तुम उस रियल एस्टेट और बिजनेस को अलग-अलग क्यों नहीं करते? यानी तुम रियल एस्टेट तो अगर फर्स्ट को स्पेशली तुम अपने लिए चाह रहे हो कि कोई इनकम निकले, हाँ तो मैं वो तो बेसिकली एक अपनी जगह है। बेसिकली वो आई थिंक कि मुझे ये मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, मैंने कहा मैंने इन्वेस्ट तो करनी ही है, तो मैं लेट मी जस्ट इन्वेस्ट इट वेयर आई एम पैशनेट। और मुझे ये फियर हम्म, कि जी अगर वो ना मैं चढ़ा सका सारी, तो ये तो वो मुझे वो टेंशन जो है ना मेरी, मेरे लिए ज़रा सेकेंडरी हो गई, क्योंकि मैं बेसिकली तो आईटी कंसल्टिंग करता हूँ ना। तो ये तो मेरे लिए एक पहले ही साइड हम्म, वेंचर है वो। मुझे वहाँ पे एक पूरी मैनेजमेंट टीम कंस्ट्रक्ट करनी है जो उसको चला सके, उसको हम्म, उसकी सीटों को भरा रख सके वगैरह वगैरह, उसकी लोकेशन अगर अच्छी होनी हम्म, चाहिए, लश हम्म, पश ये वो। तो वो मेरे पास उसका रफ हम्म, खाका है, लेकिन एग्जैक्टली क्योंकि कभी कैपिटल इकट्ठा ही नहीं हुआ, उसमें कूदे ही नहीं उस तरह से, तो वो फिर हम्म, वो डेवलप नहीं हो सका। मेरा फोकस हमेशा यही रहा कि आईटी साइड को ही चलाते रहो। वो इतनी एनर्जी खा जाता है हम्म। बच्चों बच्चों के बाद, फिर आगे बढ़ टाइम नहीं रहता है एक आधी और। आप उसमें बैठे हो, नहीं तो तुम आप उसे अगर चला ही रहे हो अगर तो। अगर तो तुम हाँ, तो अगर तो तुम्हें लगता है कि यानी मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि रियल एस्टेट और बिजनेस मॉडल को अलग-अलग करने का, तो देखो अगर तुम मुझसे पूछो तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम वी लुकिंग एट, अगर मेरे पास पैसे हो तो आई बी कीन ऑन पार्टिसिपेटिंग इन द जो जो टेक वाला मॉडल है जो तुम्हारा,
रियल स्टेट में आई एम नॉट सो श्योर, उसकी वजह ये है कि हम लोग और जगह रियल स्टेट में कर रहे हैं, तो आई एम नॉट टू श्योर कि आई वुड वांट टू गो फॉर दिस, गोइंग कोई खास बात फॉर है भी दिस। नहीं। लेकिन ये है कि तो उसमें ये है कि अगर तो तुम उसको लहदा करते हो, even you can start off obviously initially in a rented place, जिसको बस फिट आउट ही करना है ना, बाकी फिट आउट की पैसे जाए नहीं नहीं, होंगे, मैं and if you think तू about ना it। इसको वीवर्क की तरह देख रहा है, वीवर्क का तो अपना कबाड़ा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट देखता हूँ। एक कमरा है, मैं उस कमरे में 2 कुर्सियाँ एक टेबल रेंट कर लेता हूँ, मैं वो कमरा रेंट कर लेता हूँ, तो मुझे 4% ऑफ द इन्वेस्टमेंट मिलता है। मैं वो कहता हूँ यार ये 2 टेबलें भी उस अगले की हैं, वो बिजली और ये वो भी वो मैनेज कर रहा है, को वर्किंग स्पेस बन गई, ठीक है चलो तो आपने थोड़ा ज़्यादा कमा लिया, 8% कमा लिया, बट why would you pay more than that, right? You would pay more than that if it is offering you a service which is more valuable than that. And to me, the startup really values investment, the startup really values sales and marketing. ये जो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनेगा ना, वो उस एक्चुअली उसकी वैल्यू में इजाफा कर रहा है. इट इज़ नॉट the real estate that is adding significant value. वो तो you could really, like you're saying, you could go build a house and probably make more money than that. लेकिन यहाँ पे वैल्यू तब बनती है जब आप कहते हैं कि यार हाँ इनके यहाँ अगर हम बैठेंगे ना तो ये असजद साहब हमें फाइनेंस भी ले देते हैं, ये फलाने साहब हमारी मार्केटिंग भी कर देते हैं, लाइक ऑल द पीसेस आर हियर, डू यू वांट टू गो, वी विल पे एक्स्ट्रा फॉर दिस. No, I get it. I get what you're saying. What I'm asking is कि that is exactly the model I am interested in. लेकिन मेरा सवाल ये है कि उसके लिए देखो, obviously ideally तो तुम अगर एक real estate खुद इतनी बना सकते हो and it gives you that advantage कि तुम अपने आप को rent secure कर लेते हो उसमें से, तो it's fine, like that makes sense. My question is, the business model on its own, even without an owned place, makes sense. If you are renting an underlying place and setting up this business model on top, in essence this business model can start. हाँ, right? उसके लिए कैपिटल नहीं ना चाहिए खास कोई, क्योंकि टेक्निकली तुम देखो अगर फर्ज को रेंटेड जगह है उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है. मोर चैलेंजिंग पार्ट इज मेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ द राइट काइंड ऑफ पीपल. इट्स दैट मिक्सचर ऑफ पीपल that is adding value to all of them. Agreed. So that's what I'm saying, that why don't we work on that? Why don't we work on that? That's what I work on वो all day मॉडल long. आपका चल पड़ता है eventually, तो तुम्हारे पास जब भी कैपिटल आएगा तुम क्या कह रहे हो? ये तो मैं कर ही रहा हूँ ना, मैं तो मेरे इस वक्त मैं एक रेंटेड स्पेस में हूँ. मेरी एक टेक टीम है, एक सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम है, अगर तू आता है एक इन्वेस्टमेंट की टीम है. वो जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगी, अब हम उसको ज़रा स्केल आउट कर रहे हैं, यानी उसका बेसिक फंडामेंटल तो हम 10 साल से कर रहे हैं, हमें अच्छी तरह पता है उसके सारे. उसको जब हम एट स्केल करना शुरू होंगे तो वो जाहिर है उसमें से एक अपनी सिनर्जी इसका सेट निकलेगा, ज़्यादा किस्म की टेक आ जाएगी और ज़्यादा अच्छे इन्वेस्टर्स आ जाएंगे और सेल्स एंड मार्केटिंग वाले भी अच्छे आने शुरू हो जाएंगे कि यार ये तो बड़ा मज़े का एनवायरनमेंट बना हुआ है यहाँ पे. अभी वो एक फ्रिंज है, हम एक छोटी सी सोसाइटी में एक छोटी सी जगह पे बैठे हुए हैं और उसमें हमारे जो अपने पर्सनल नेटवर्क के लोग हैं उनको हम खींच के लाते हैं, इनवाइट करते हैं, जस्ट टू प्रूव द कॉन्सेप्ट एंड demonstrate to them that this can actually work and benefit. But it has to be done at a slightly larger scale for it to start growing on its own and you know making serious money out of So it. what's needed to go take it to that stage? Yani what's missing right now to take it to that stage? Yeah, I think many things. We don't have a premises to really do that at a larger scale. We don't have an administrative team to scale it up. Because I need somebody other than myself to run that. I'm looking for that entrepreneur who can take that and run with that somewhat. And then the last part, which I think is the most frustrating one, is कि लोग बहुत सारे वो भी चिकन एंड एग सिचुएशन है ना. यंग लड़का जब स्टार्टअप में आता है उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, वो रिसीड कर जाता. वो सैपलिंग उसको टाइम पे पानी नहीं ना दिया आपने तो वो मुरझा जाती है, वो 2-3 साल बाद वो वहाँ नहीं रहती. तो फिर वो लड़के नहीं मिलते आपको जो, मतलब आई टॉक टू दिस गाय हु इज ब्रिंगिंग इन लाइक 2-3 मिलियन ऑफशोर से बैठा, 2-3 मिलियन अ ईयर का वो सेल्स का वो करता है काम एक कंपनी में. वो अपनी एक कंपनी बनाना चाहता है सेल्स एंड मार्केटिंग की, लेकिन हौसला नहीं पड़ रहा, नौकरी छोड़ी नहीं जा रही. सो वो जब वो अगर उसको मैं ये कहूँ ना कि तू इधर आके बैठ जा, देख तेरे तू घिरा हुआ है कस्टमर से, ये असजद साहब भी तेरे से सेल्स एंड मार्केटिंग करा लेंगे, ये उमर साहब टेक वाले भी तेरे से सेल्स एंड मार्केटिंग करा लेंगे, तो ऑल यू हैव टू डू इज सिट योर एस डाउन एंड यू विल हैव ऑल द पीसेस हियर, इट इज लाइक अ वेरी रेडी सेट, बट यू डू योर ओन थिंग, डोंट गिव अप ऑन दैट ड्रीम, डू योर ओन थिंग एंड यू बिल्ड अराउंड इट. अब वो कर लेगा बिकॉज इट लुक्स लाइक अ स्मॉलर जंप,
स्मॉलर रिस्क। उसके जेहन में 75,000 आइडियाज़ हैं, उसकी टीम बनी हुई है, उसकी स्किल रेडी है, उसके पास प्रूवन एक्सपीरियंस है, लेकिन वो क्योंकि मेरे अंकल के भांजे का जब हुआ था तो उनका फेल हुआ तो बड़ी बुरी हुई उनके साथ, तो फिर रिकवर ही नहीं कर सके। तो वो इतना डरे होते हैं सारे हमारे कल्चर में कि आप उसको उठाते उठाते ना थोड़ा वक्त लगता है, वो आप इमीडिएटली नहीं कर सकते। टेक में बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। टेक में स्कूलों कॉलेजों में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ानी शुरू हो गए हैं लोग, तो बच्चे निकलते साथ ही ना फिरकी घूम रही होती है उनकी, लेकिन उस फिरकी 6 महीने साल बाद सेट हो जाती है, क्योंकि वो 2-4 फेलियर जब उसके होते हैं ना तो वो ठुस हो जाता है। सिलिकॉन वैली में तो देख सपोर्ट सिस्टम है ना जो उनको उठाता है। उधर जो फेल्ड एंटरप्रेन्योर है उसके सर पे ताज होता है, इधर हमारे यहाँ जो फेल्ड होता है उसकी पिट्ठी पे जूती होती है अब्बा जी की। तो वो जुतियां मारते हैं, हाँ जुतियां मारते हैं। तो थोड़ा सा उसको सपोर्ट दे देनी चाहिए कि यार चल इवन इफ यू क्रैश यू डोंट लाइक टोटली बर्न आउट, थोड़ा बहुत चलो लॉस हो गया, यू लर्न अ लेसन बट यू डोंट फ्रिकन जस्ट डाई। आइडियाज आर प्रीटी रीजनेबल टू, आई टेल यू। मैं ये जितनी क्रंच बेस की मैंने स्टार्टअप्स देखी हैं, चवल से चवल आइडिया है, 1-1 2-2 मिलियन का पता नहीं अल्लाह जाने कहाँ से उठा रहे हैं। इंडिया से कंपनियां इस चक्कर में लगी हुई हैं। इट्स जस्ट दिस नेटवर्क ऑफ एक्सेस टू कैपिटल दैट इफ यू गिव दीज पीपल दे कैन डू वंडर्स विद दैट अमाउंट ऑफ मनी। $1 million इज लाइक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं होता। उस बेचारे का जेन एक बहुत महदूद डब्बे से निकल के काफ़ी बड़ा हो जाता। 1-1 लाख के पीछे करते हैं लोग काम, में जब तुम मिलियन की बात करता है 1 लाख गोज अ लॉन्ग वे इन पाकिस्तान। Anyways, ठीक है, इसको करते हैं। मैं हां let's take these multiple tracks. So what I need to do is come back to you in the next couple of days maximum with some ideas कि भाई किस सेक्टर में किस तरह की क्या हिसाब, फर्स्ट लेवल सीड किस लेवल वाली पे करने के लिए लोग तैयार होंगे। This I need to come back to you. मेरा ख्याल है कि जो तेरा वाला आइडिया वो है अच्छा, उसको थोड़ा सोचते हैं कि अगर हम करवाना चाहें, बिकॉज अगर बस तुम कह रहे हो ये मार्केटिंग वाला बंदा है, ठीक है, अगर फर्ज करो कि इसको खींचने के लिए अगर आप ये करते हो कि हम इतना कैपिटल इकट्ठा कर रहे थे कि उसको 1 साल की सैलरी उसको कहते हैं भाई तू उसकी फिक्र ना कर, 1 साल की सैलरी तेरी हम हाँ बिल्कुल नहीं, उसके बगैर आगे जो है तू उसके बगैर भी आ जाएगा, वो तो 3 महीने के ऊपर भी आ जाएगा। उसको सिर्फ ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं मतलब मैं अगर अपने पैरों पे कर सकता हूँ, यूँ कह ले। तो अपनी पोजीशन देख ले यार, तो इतना अर्सा तूने नौकरी की है ना, ये तेरा दोस्त तुझे एक छोटा सा इंक्यूबेटेड एनवायरनमेंट दे रहा है, तुझे लग रहा है कि यार मैं शुरू से शुरू नहीं कर रहा, मुझे थोड़ा से मेरे इर्द गिर्द एक सपोर्ट सिस्टम है जो मुझे क्रैश नहीं करने देगा या मैं मेरी ऑड्स ऑफ सक्सेस को बढ़ा देगा, एंड दैट्स ऑफ रियल वैल्यू टू यू। तो कहता है मैं टोटली अगर मैं अपना होता तो यू मे नॉट हैव डन दिस। अब वो तुझे उसका सहारा लग रहा है ना, तो इर्द गिर्द तेरे और लोग हैं एक जैसे हैं, कम्युनिटी मिल रही है, you're more likely to do it, and that's what incubation is. It's just providing that supportive environment which just gives more people the confidence of doing it. पिच मेरी बड़ी जबरदस्त है। करते हैं, मैं सबको सही तरह लेके चलते हैं हम इंशाल्लाह। वही बात है ना कि अब तो मेरा वही बात है, पिछले 2-3 साल तो मेरे जो रूटीन चली थी मेरी, उसमें तो पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए कुछ करना। नहीं वैसे अभी भी आपसे ये व्हाट्सएप करने के लिए मुझे 5 बार ही हमने रीस्केड्यूल किया, ऐसा तू वेला अजय भी नहीं। वो तो मैं तेरे से बात ही नहीं करना चाहता ना, इसमें बड़ी मुश्किल से तेरे से बात करके दिल चाहता है। ये तो तू मेरे हौसले की दाद दे जो मैं पिछले 2 घंटे से तेरे साथ कर रहा हूँ। मेरी बीवी तैयार खड़ी है मेरी सास की तरफ जाने के लिए। आखिरी जो मैं चीज कहनी थी यार, वो पैसे तो डाल, वो जो टीसीएफ वाला दूसरा फंड जो शुरू किया है, क्या कर रहा है तू इसका कोरोना वाला यार, मैं वो तो मेरे चल ही रहे हैं, स्कूल वाले तो चल ही रहे हैं। पहले एक वाली की एंडाउमेंट हो गई थी, फिर दूसरे की शुरू कर दिया, अल्लाह का शुक्र है वो भी अच्छी चल रही है। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है कि जब ये कोरोना वाला काम शुरू हुआ ना, तो इन लोगों ने भी शुरू किया ना अपने टीसीएस ने। मेरी पहले उससे बात हुई जो मुश्ताक टीसीएफ ने, इनका जो ना मुश्ताक छापड़ा जो है ना, जो बोर्ड मेंबर है, फाउंडर है, उससे मेरी बात हुई। तो उसने मुझे वो बेसिकली वो सिंध गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने ना एक बनाई हुई है कमेटी, जिसमें 3 प्राइवेट सेक्टर के हैं, 2 गवर्नमेंट के हैं, तो उनमें से एक ये बंदा है। उससे मैंने पूछा कि यार तुम्हें क्या लगता है कैसे किस तरह से करना चाहिए काम। उसने मुझे 2-3 ऑप्शन बताए। उसने कहा देखो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बेस्ट ऑप्शन है टीसीएफ वालों के जरिए, जो वो कर क्या रहे हैं कि ऑब्वियसली उनके 800 लोकेशन है, उन लोकेशंस में जिधर उधर जो उनके टीचर्स और अलुमनाई है वो बैठ के आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन सी फैमिलीज बिल्कुल ही मुसीबत में पड़ी हुई है।
तो उन तक फिर ये पैसे पहुंचा रहे हैं थ्रू जैज कैश ट्रांसफर और इस तरह की चीजों से. So मैंने basically there's an on ground identification of people who need the money most, and then basically जो collect कर रहे हैं पैसे वो उन तक पहुंचाए जा रहे हैं. तो थोड़ा लेट हो गया तू, उसमें मैंने मैंने अभी निकाले हैं, 2 मिलियन के करीब ही निकाले हैं उसमें, इनको मैंने दिया है, लेकिन ओहो तेरा थोड़ा वो परसेंटेज है, मैंने तो बांट दिया इस साल, क्योंकि सब लोग ही लगे हुए हैं, हर किस्म के इदारे जिसके पास हाँ जाओ वो लगा हुआ है, तो मैंने उधर लगे हुए इधर उधर लगाए हैं. कि मैं ज़ाती तौर पे वैसे क्योंकि मेरे घर में 90% डिस्कशन एकेडेमिया पे होती है, तुझे पता ही है, अब वो मम्मी दोनों इसी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं. मैं तुझे ये बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि टीसीएफ का जो एजुकेशन मॉडल है ना, दिस इज़ डेस्टिन्ड टू फेल. they're just दिस इज they're destined to fail. They are missing the whole digital revolution. मेरी अम्मी चांदबाग चलाती हैं, which is a very sort of elite school, HSN type, 1200-1400 बच्चे. They are on the verge of bankruptcy. इस महीने अच्छा they're in serious financial trouble. ये जो मॉडल है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट का, this is, I can see it very very clearly. Like we have customers in this industry. My parents are in it. ये जो 1-to-1 बिल्डिंग बनाओ, ये करो ना, it's all e-learning from here on. Any future plans for scalable education department has to involve an electronic component. They don't have any of that. इन्होंने कोई काम ही नहीं किया हुआ उस एरिया में, ये कन्वेंशनल मॉडल्स में फंसे हुए हैं. इनको अंदाज़ा नहीं है कि वो 2 करोड़ जो तू एक बिल्डिंग के लिए इकट्ठी करता है उससे ई लर्निंग में कितना कुछ हो सकता है. या इन्हें अंदाज़ा है और ये इग्नोर कर रहे हैं, नौकरियाँ लगी हुई हैं, या ये देर जस्ट लाइक माई पेरेंट्स नेवर लिसन टू मी. आई केप्ट वाइनिंग एट देम. इस वक्त सारे स्कूल ऑनलाइन जा रहे हैं. नाउ देयर सेइंग यार ये दिस इज़ वेरी डुएबल, ये तो बड़ा ओके, लेट्स हाउ डू वी अप्लाई दिस टू आवर कल्चर एंड हाउ डू वी, बट दिस ना इनफिनिटली स्केलेबल यार वर्सेस 20 किड्स अ ईयर और समथिंग. वैसे मैं तुझसे एक चीज पे डिसएग्री करूंगा. व्हाइल देयर इज नो डाउट कि ई-लर्निंग इज गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट गोइंग फॉरवर्ड, मैं तुम्हें ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस दैट इज गोइंग ऑन आइदर हियर इन द यूएई या मेरी जितनी पाकिस्तान में लोगों से बात हो रही है, द आइडिया ऑफ ई-लर्निंग, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक होम स्कूलिंग जिस तरह भी हो. दिस विल नॉट कैच ऑन, लाइक नॉट दिस वे. छोटे बच्चों के लिए इट विल नॉट कैच ऑन. Not this way, but eventually there will be a way. इवेंचुअली विल बी अ वे, कोई शक नहीं है. और कोई शक नहीं है. जो है ना रिसोर्स स्ट्रैप्ड कंट्रीज, यानी हमारे पास वसाइल नहीं है अपना एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के. वी हैव टू बी इनोवेटिव, वी हैव टू कम अप विद वेज इन विच वी कैन मेन स्ट्रीम दिस. You know, it's there is no successful model out there for e-learning, but every year you look at this, you will see more and more very serious players coming in, innovation coming in all dimensions. MIT का कोर्स कभी तू सोच सकता था जब तू ग्रेजुएट किया है कि MIT का सारा कोर्स वेयर तेरे पास आज पड़ा, तू बैठा MIT की एक डिग्री कर सकता है ऑनलाइन? यू नेवर हैव थॉट. अब उसकी सिर्फ इम्पार्टमेंट हायर लेवल पे डिफरेंट है, यू नो K-12 पे डिफरेंट है. देर आर चैलेंजेस देयर, और स्टार्टअप्स लगी हुई हैं दबा दब उसके मसले हल करने. हमें ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, यानी पाकिस्तान में कभी भी बजटरी फिजिकल स्पेस नहीं मिलनी है एजुकेशन पे 5% खर्चने के लिए जो रिक्वायरमेंट है आपकी. व्हाट यू हैव टू रियली बी इनोवेटिव विद इज़ टू मेक द मोस्ट ऑफ दैट 1%. अब ये NGO है, इसको चाहिए चलो कम एक्सपेरिमेंटली स्टार्ट करें, उसको करें तो सही ना. इट इज़ नॉट दैट इमेच्योर एन आइडिया कि आप करें ही ना. वैसे अगर तू समझता है कि तू इनके साथ, क्योंकि जनरली ये लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं बातों को, अगर तू समझता है कि तेरे पास कुछ है इनको डायरेक्ट करने के लिए, तो मैं तेरी इनसे बात करवा देता हूँ, इनके सीईओ से या किसी से. मैं अपनी मेरी वालदा सगी, मैं कोई पिछले 3-4 साल से मैं उनका दिमाग चाट रहा कि यार ये दिस इज ऑल गोइंग टू गो साउथ, यू गाइज नीड टू चेंज. लेकिन इतना मोमेंटम, इतना इनर्शिया होता है पिछली चीज़ों का. बोर्डिंग स्कूल जिसकी 150 साल की हेरिटेज है, तो सोच सकता है HSN कभी ऑनलाइन हो जाए, वो घोड़े पे बैठ के पग पहन के बच्चे उनके फिरते हैं, वो तो माहौल ही डिफरेंट है. वो 90% तो वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, यानी हॉस्टल चलाना, केटरिंग, यूनिफॉर्म, किताबें छापनी, दिस इज नथिंग टू डू विद एजुकेशन. लेकिन 60% वसाइल चांद के इसके ऊपर लगते हैं.
देखो ये लोग जो है, ये लोग तो ऑब्वियसली वो नहीं है चीज, यानी ये तो मनी मेकिंग ही नहीं है ना, ये तो चलते ही उस पे डोनेशंस पे ही चलते हैं। तो इफ दीज गाइज माइट बी मोर विलिंग टू लिसन। No, they run on education, they run on donations, but they the academia जो इनके academic side होगी ना, वो वहीं से आई होती है, किसी स्कूल से पकड़े होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से पकड़े होते हैं। वो मेरे अब्बा जी को 65 साल उनकी उम्र है, रिटायर हो गए हैं, ऐसे किसी एनजीओ में काम करेंगे। तो जब तू उनसे पूछेगा उनको क्या पता ई लर्निंग का। वो तो ही कैन नॉट कंसीव कि एक बहुत बड़े कैंपस के बगैर यूनिवर्सिटी बन सकती है। उनको बिठा के समझाना पड़ता है कि अब्बा जी आजकल तो मतलब है, आप अपने टीचर को कभी ऑनलाइन सुन लें। मेरी वालदा ने अपने टीचर्स को जब ऑनलाइन देखा तो वो मतलब शी वाज डिस्गस्टेड कि यार ये टीचर है, ये इस तरह क्लास लेता है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये तूने नहीं पढ़ा होगा, लम्स में ऐसे टीचर होंगे तेरे जो तू कहोगे यार हाथ जोड़े भाई, हमने हमने लकास छोड़ दिया कि टीचर माड़ा है, राइट? बिकॉज हाँ एट नो पॉइंट वाज दैट कंपैरिजन बीइंग मेड गई है। वो एमआईटी का जो ये लेक्चर था ना वो बहुत अच्छा है, ये टीचर तो बहुत माड़ा है। अब वो दुनिया ही फर्क है। नाउ स्कूल इज अबाउट क्यूरेशन ऑफ कंटेंट, इट्स नॉट अबाउट क्रिएशन ऑफ कंटेंट, इट्स अबाउट फाइंडिंग द बेस्ट लेक्चर एंड मेकिंग श्योर यू डिलीवर इट। यार ये मेरे बच्चे जो है ना मुझे लिख लिख के पर्चियाँ दे रहे हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब को उनकी तकरीर के दौरान दी जाती है ना वो पर्ची पे लिखा है व्हेन विल मीटिंग बी ओवर। हमने नानों को चल ठीक है, मैं उसके बाद ये गुफ्तगू बड़ी मज़ेदार रही, इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए जब तेरे पास फुर्सत हो ना। तो इसकी ये हाँ हाँ खास तौर इंशाल्लाह करते हैं, पे एजुकेशन वाली साइड को भी मज़ीद मैं तुझे अपना ओपिनियन देता करते हैं हूँ। जरूर। ठीक है ले फिर, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके।